Everyone. It's good to see so many of you joining. So, my name is Rima, and I'm thrilled to welcome you all to this webinar. Today, we have a very special guest with us. We have Mr. Siddhant Sadana. He's a branding consultant and an online marketing strategist. Mr. Sadana has worked with brands like Chowkidani Group, Chai Kapi, and Johnny Hot Dog, and has curated more than 24 brands. He's also been featured by several publications, including Array, Forbes, Your Story, Vogue, and Red FM, well, just to name a few. So in this session, he'll be sharing his insights on how you can stand out with marketing in today's competitive world. So get ready to learn some valuable strategies and tips from him. Welcome, Mr. Siddhant. How are you today? Hi, Rima. Thank you so much for such a warm welcome. I'm good. How are you doing? Great, great. I'm just excited to see because even I want to see what we're saying. I want to learn all those strategies. I've been following you since a long time, so excited to learn more. Brilliant. So I think one of the first things I need to do is first of all like welcome everyone to this webinar. I hope this is value. I know for a fact that this is value packed for existing restaurateurs, aspiring restaurateurs and F&B entrepreneurs, and also people who want to invest in in F&B chains or franchisees. So this is a module that I've created. So what I'm going to do is I'm quickly going to jump to the screen. Before that, before Hmm. that I jump to the screen, also, I want to tell you a little about myself. So I am just gonna, can everybody see my screen, first of all? Yeah. Siddhant, I'm sorry, just one sec. So guys, I see there are a lot of people who have started chat already, and there are few that I'm assuming will be joining more. So guys, I would just request you to keep your mics on mute. And if you have any doubt, any questions, please drop your questions in the chat box. I'll make a note of it, and we'll take Q&A session at the end of the presentation. Thank you. मैं दोनों का मिक्स यूज़ करूँगा पूरी प्रेजेंटेशन में सो दैट कंफर्टेबल Yeah. रहे सबको सी मेरा गोल यही है कि व्हेन एवरीबडी गोज बैक दे रिकॉल वट एवर देव लर्न इन दिस सेशन बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट like over a decades experience of mine, almost a decades experience, almost 10 years का experience का ये पूरा presentation है, but these are also very few key pointers that I've put across. अब होता क्या है, there were two options that I had, to make it value packed. एक तो ये था कि that I basically put across a lot of points and a lot of learnings, but I haven't done that. I've only put across 5 to 6 वैल्यू पैक्ड पैरामीटर्स प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर जो आप ये 5 to 6 एक्शन पॉइंटर्स पे कोशिश करें, लाइक इमीडिएट एक्शन पॉइंटर्स पे कोशिश करेंगे एज एन एफ एन बी ऑन्टरप्रनोर और एज एन एस्पायरिंग एफ एन बी ऑन्टरप्रनोर, तो आपको आर ओ आई मैक्सिमम रहेगा. Because I could have taught you hundreds of things, but I've chosen these 5 to 6 parameters, the more important parameters. Because I think सबसे पहला सवाल हमेशा एफ एन पी ऑन्टरप्रनोर्स को जो आता है वो ये होता है कि हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं, बट हम करें क्या, what is the exact thing that we should start off from. So let me start off with introducing myself. My name is Siddhant. I am an IIM grad, an MBA from IIM. I'm the only IIM grad in the history of IIMs to have an entrepreneurship and entrepreneurship specialization in my degree. It was just introduced by one IIM, that too for 1 year, and there were two people who took this course because we had to sort of opt out of placements. तो दो लोगों ने लिया था 600 लोगों में से, एंड उसमें से मैं आई कंप्लीटेड इट एंड द अदर पर्सन चूज टू ऑप्ट आउट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप थिंग. So luckily, coincidentally, I'm the only IIM grad with an entrepreneurship specialization in my degree. And with all of that, I passed out in 2018. 2018 के बाद उससे पहले भी I worked with a lot of food and beverage brands across India. एंड उसके बाद मैंने खुद का इंदौर के अंदर एक कैफ़े सेटअप किया. मैं जयपुर से हूँ. मैंने इंदौर में खुद का कैफ़े सेटअप किया जो एक आईओटी ड्रिवन कैफ़े था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ड्रिवन कैफ़े. हमारे सारे ऑपरेशंस आईओटी थे, आईओटी ड्रिवन होते थे. सारे कम्युनिकेशंस विद इन द कैफ़े वर आईओटी ड्रिवन. सो इन 2018 itself, बाय हमने स्टार्ट किया था इन द फर्स्ट क्वार्टर विच वॉज अप्रैल, मार्च अप्रैल के अंदर हमने स्टार्ट किया था. एंड बाय द एंड ऑफ 2018 December, we were ranking number one in Zomato Gold sales in the country. And for the next 2 years, we ranked amongst the top 10. In 2018 and 19, we ranked amongst the top 7 restaurants in the city within the first 6 months.
बट अगेन, Amazing. एज मच एज आई लव एफ एन बी, जितना मुझे एफ एन बी से प्यार है, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री से, एल्को बेवरेज इंडस्ट्री से भी, मुझे आई हैड टू मूव बैक टू माई सिटी विच इज़ जयपुर, एंड हेंस द कैफे स्टिल operational. It goes by the name Munro, and it's doing well, but there are a lot of lessons I learned there, and post that I started working with F&B brands and hospitality brands for their marketing. So everything that was there to their marketing wing setup, to their business modeling, to their branding strategy, I would do everything, right? Now, with all of that being said, just give me a second. With all of that being said, marketing karte karte, I started to get consultancy roles with businesses, and henceforth I started to work with consultancy role. उतनी capacity नहीं थी जितनी marketing clients की होती थी, but consultancy roles में I would be more involved. So since the last five, roughly like since the last 4 to 4 years mostly, I've been working with the F&B brands in and out. एंड द लास्ट 2 years I've been working for consultancy. मैं consultancy के लिए उनके काम करता था, उनको business model सेटअप करने में, उनकी product specialization, उनकी marketing strategy, customer acquisitions, everything. So I do see a lot of, अच्छा, these chats are for the okay, these chats are for yeah, for the language. Now, Yeah. with all of this being said, I was a pretty average student back then, and I was always focused on fun. And of course, entrepreneurship is, I won't say entrepreneurship is not about learning anything new, it is. But if you don't have fun during the process, right, I think it doesn't make sense. So one of the first things मैं आपको ये बताऊंगा कि F&B में the first things you have to do is have fun with yourself, with your clients. Make it an experience worth recalling. Whatever you do today, it'll be an experience for tomorrow. So one of the first things I want you to do, I want you to put the name of your business, be it in food and beverage or be it in any other industry, and also your name in the chat with the name of your business or brand, right? Okay, We I see Nevertheless Bar and Lounge. That's a great name though. Harleen Singh. I see Rajbhog, Rajdeep. One second. I see, Chicago Pizza, Ronit, BFF, Yash, The Ghost Kitchen. yes, I see Yeah. Chicago Pizza. I see Yash. Yeah. And okay. I don't see the name of the owner of Chicago Pizza. Who's that? Can you sort of help me with the name? आई थिंक दैट्स अ वेरी जस्टिफाइड रिक्वेस्ट. मैं कभी भी अब कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ करूंगा तो मैं आपको उसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा. इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये होता है कि हम इंटरनेट नेटवर्क, हम चीज़ों के बीच में इंटरनेट का नेटवर्क बना के उनसे कम्युनिकेट कराते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बटन यहाँ पे दबाया टू कम्युनिकेट, हमने 5 ऑप्शंस दे दिए टू कम्युनिकेट समथिंग ऑन द टू द शेफ और टू द वेटर. तो हमने इंस्टेड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन ऑप्शन बेस्ड कम्युनिकेशन रखी, जिसको चैटबॉट कहते हैं ना. उसको अगर आप रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करें तो आप बेसिकली बटन सिस्टम से अलग अलग चैटबॉट मेथोडोलॉजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो अपने शेफ से, वेटर्स से आप इंटरैक्ट कर सकते हैं. आईओटी एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है, मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर इसको भी इलैबोरेट करूंगा. ओके, ओके, ओके. आई see a lot of people. Perfect. So I see that there are a lot of F&B entrepreneurs already here. So today's the whole lecture today, or the whole session webinar today, is around building a strong brand that stands out from the competitors. अब आप स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स बना सकते हैं, बट लॉन्ग लास्टिंग ब्रांड्स के लिए आपको लेस कंपेटिटिव ब्रांड्स बनाने पड़ते हैं. लेस कंपेटिटिव का मतलब होता है हम अपनी नई नीश कार्व करें. जब मैं एमबीए में था, आईएम के अंदर, मैंने एक बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी समझी थी, एंड इफ़ यू गाइज वांट, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं. इट्स कॉल्ड द ब्लू ओशन रेड ओशन स्ट्रैटेजी. आप बस इतना सा नाम लिख सकते हैं, मैं समझा देता हूँ क्या होता है. ब्लू ओशन और रेड ओशन जितना साउंड करता है वही होता है. रेड ओशन मतलब ब्लड की ओशन, रेड इज द कलर रिप्रेजेंटिंग ब्लड. तो ब्लड ड्रिवन ओशन, तो उसमें क्या है, कंपटीशन होता है ना, तो लोग एक दूसरे को लाइक दे ईट देयर ओन शेयर्स, एंड देयर इज लाइक ब्लड रिप्रेजेंट्स दैट. सो रेड ओशन इज एन इंडस्ट्री जहाँ पे आप compete कर रहे हो, और ब्लू ओशन इज अ वेरी क्लीन ओशन. ब्लू ओशन मतलब वेरी क्लीन ओशन, जहाँ पे देयर इज नो competition. When you go to swim in that ocean, basically there is no competition and it's very clean waters, and you get a huge ocean to swim in without any fear. तो ये ओशन का representation होता है इंडस्ट्री से. ब्लू ओशन मतलब एक वेरी competitive इंडस्ट्री, एंड सॉरी, रेड ओशन का मतलब होता है वेरी कंपेटिटिव इंडस्ट्री, और ब्लू ओशन का मतलब होता है लीस्ट कंपेटिटिव इंडस्ट्रीज, जहाँ पे आप एक खुद का मार्केट स्प्रेड बना रहे हैं, जहाँ पे आप खुद एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है आपके पास अक्वायर करने को.
ये F&B में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है। ये लेक्चर आज का जो है, इट इज़ फॉर बोथ द काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जिनके खुद के बिजनेसेस हैं, या they are planning to expand, or they are trying to get into the industry of F&B and also scale up, or even take a franchisee. So this will help you develop logics. So first of all मैं case study से start करूँगा। इसमें से have you heard about all the brands? Say yes or no, and when you say no, tell me कौन सा brand नहीं सुना हुआ है आपने इसमें से। Okay, so okay, people have heard about this brand. Okay, okay, okay. Okay, Harleen, which brand have you not heard about? Can you sort of write that also? Take a coffee. Perfect, perfect. ठीक है. Theka Coffee is, by the way, the fastest growing F&B brand. I mean, in the present, because it's crossed a valuation of 100 crores. Also came in Shark Tank. It got famous after that, but there's a lot of story behind and before it came to Shark Tank. So QSRs, I'm sure everybody understands the meaning. It's called quick service restaurants. F&B सेटअप्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट एक होता है, कैजुअल डाइन होता है, एक फास्ट सर्विस रेस्टोरेंट भी, एफएसआर्स भी फेमस हो रहे हैं, और एक फाइन डाइन होता है, एंड देन कैफे एंड डिफरेंट फॉर्मेट्स कीप कमिंग इन, बट मोस्टली एवरीथिंग गेट्स रैप्ड अप इन दिस। अगर आप बूफे, मतलब इफ यू वांट टू कंसिडर बूफे एज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ रेस्टोरेंट, नो, दैट कम्स अंडर ईदर फाइन डाइन और ईदर कैजुअल डाइन, जिसके अंदर आप बूफे इंटीग्रेट करते हो। सो दीज आर मॉडल्स ऑफ बिजनेसेस। नाउ आई एम गोना शेयर सम सक्सेसफुल मॉडल्स और सम सक्सेसफुल ब्रांड नेम्स, और मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाला हूँ इसके बाद। तो आई टेल यू व्हेन टू अनम्यूट एंड टेल मी व्हेन व्हाट इज द कॉमनैलिटी। सो आप एक बार ये ब्रांड्स देख लो। QSRs में चाय सट्टा बार, वाओ मोमोज, ठेका कॉफी ब्रू, सॉरी ठेका कॉफी, स्टारबक्स, सबवे, दिस इज QSR। देन कैजुअल डाइन में बात करें, McDonald's, Domino's, Haldiram's, and KFC. Now, a lot of people might argue that McDonald's is also a QSR. Yes, it is, but it's moved on to a model of casual dining in the last 2 to 3 years. How? I'll talk about that also. But yes, McDonald's is a casual dine that also focuses on quick service. It's a fast food casual dine, which is now also the new terminology of FSR is where McDonald's is lying now, which is fast service restaurants. एंड फाइन डाइन, कपल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ फाइन डाइन, पहले मैं एक बार कैजुअल डाइनिंग का बताता हूँ। मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, हल्दीराम्स, KFCs। फाइन डाइन के अंदर फर्जी एंड बारबेक्यू नेशंस आर टू एग्जाम्पल्स। ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्केल्ड रेस्टोरेंट्स हैं इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया ऑल्सो, मतलब थोड़े खाली इंडिया में हैं और थोड़े पूरे वर्ल्ड वाइड हैं। Cloud Kitchen, Behrooz, and Oven Story. These are some of the cloud kitchens. There are a lot more. I've not added too many so as to confuse you. Now my question to you is, what is the commonality? क्या चीज common है इसके अंदर? You can for the next 5 minutes unmute your mic and tell me that कि इन सब brands में क्या common है? What is the thing that is common in all of these brands? All are pan India based. ओके, ओके, पैन इंडिया, ठीक है। उसके अलावा All related to food. फूड, तो वो तो पूरी प्रेजेंटेशन ही मेरी फूड के रिलेटेड है, सो हाँ। एनीथिंग एल्स इसमें जो आपको कॉमन लगे इनके, कुछ एनीथिंग They have some USB related to the food. ओके, यू वेरी क्लोज। आई रियली अप्रिशिएट इट वाज आंसर्ड। मेरे They are यहाँ operating in a Mostly all single are like cloud kitchen and cafe based concepts. ओके, they are operating in very niche market. ओके, सम ऑफ देम आर नॉट क्लाउड किचन्स। फाइन डाइन में थोड़ा क्लाउड किचन नहीं होता है। हु वाज दिस? द लास्ट पॉइंट वाज नीश मार्केट। किसने पॉइंट बोला? कैन यू टेल मी योर नेम? Anish. Anish, brilliant. So, one of the And Siddhan, somebody What? has commented, Pranay Kothari has written each brand is synonymous to a single product. brilliant, brilliant. Appreciate- Ishita has commented each product. Sorry. Yes. So I think you guys are just there. You've answered it all honestly on my behalf. These brands are based out of niche products, and they are known for a certain single product, one, or a certain single concept. So for example, ये सब तो product driven है. Subway is known for sub. So Haldiram's is known for a concept, right? So the concept of North Indian cuisine in a fast serving restaurant, that's a concept. Fuzzy Cafe is known for molecular gastronomy and a lot of fusion cuisine, right? Where you sort of inculcate the Indian traditional and the Western fusion. Barbecue Nation is known for the barbecue concept in a buffet manner. So either they are known for a product
or either they are known for a concept. But two people or three people brilliantly said this thing. Yes, Pranay, I'll get to that. They are from the niche industry, so they have their own niche. Now the question is, have they followed someone or have they created their own niche? They might have seen, उनको छोटे मोटे एग्जाम्पल्स दिखे हों इसमें, बट जब हम बात करें नीश बनाने की, वो होता क्या है, आई विल डिस्कस दैट. बट वन ऑफ द मेजर सक्सेस ऑफ देयर बिजनेस मॉडल्स इज बिकॉज ऑफ नीशिंग डाउन, right? Niching to a non-competitive scale. Pranay, you're right. This thing, Fasos is used to be the parent brand of Oven Story and Behrooz. Now Fasos is also a sub brand of Rebel Foods. One of my senior is also the COO of Rebel Foods. So Behrooz ho gaya, ek Madras karke they have another brand, Oven Story ho gaya, and there's Fasos. So they also have one or two more brands. So they are one of the most successful cloud kitchens in the whole of the world. Because of the fact the number of users they have as compared to any other cloud kitchen in the world is the highest. इन दोनों का भी सिमिलर कॉन्सेप्ट रहा है नीशिंग डाउन का. तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट में जाओ, क्लाउड किचन, फाइन डाइन, कैजुअल डाइन, QSRs, ये सब नीशिंग डाउन के ऊपर हैं. सो दे क्रिएट अ न्यू कल्चर, they actually niche down. Now niche down का मतलब क्या होता है? Do you understand what niching down means, or should you should I explain that further? No, it's like having a comfortable position, a suitable position in the industry. Okay, so let me sort of explain this further here. Niching down का मतलब होता है, for example, Italian cuisine एक time पे let's go back to 1995 when Italian, or let's go back to 2000, early 2000s, when the Italian cuisine was getting very famous. So the first restaurant, now multi cuisine restaurants होते थे उससे पहले, फिर एक रेस्टोरेंट का चेन आया जो इटालियन क्यूजीन ला रहा था. अब मैं हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, कि एक मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट से एक इंसान ने बोला कि नहीं, मैं एक इटालियन क्यूजीन रेस्टोरेंट लाऊंगा, बैक देयर इन द अर्ली 2000s. सो वो इटालियन रेस्टोरेंट वाज नीशिंग डाउन. आपने बड़ी कैटेगरी से एक छोटा नीश पकड़ा विच इज इटालियन, बट होते होते फिर इटालियन रेस्टोरेंट्स बहुत हो गए. फिर एक इंसान ने बोला कि मैं एक बिजनेस आके, एक ब्रांड आके बोले कि अब मैं एक पिज्ज़ा ड्रिवन रेस्टोरेंट लाऊंगा. सो फिर पिज्ज़ा ड्रिवन रेस्टोरेंट आने लगे. अब फिर 2017-18 के बाद से पिज्ज़ा ड्रिवन रेस्टोरेंट्स के बाद आए पैन टॉस्ड और वुड फायर ओवन पिज्ज़ाज. तो उनने और फर्दर नीश डाउन किया, राइट? अब ये कैटेगरी बहुत नीच डाउन होते जा रही है. सो देयर आर प्लेसेस दैट ओनली सर्व एज देयर मेन 80%, इसको परेटोज प्रिंसिपल बोलते हैं. मैं आपको परेटोज प्रिंसिपल इसके बाद बताऊंगा. बट रेस्टोरेंट्स के मेजर ऑफरिंग्स आर जस्ट दैट वन वुड फायर ओवन पिज्जा, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट दे ब्रिंग ऑन. बट उन्होंने क्या किया, पिज्जाज पूरी कैटेगरी ना लेके उन्होंने बोला हम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पिज्जाज लेंगे. देन नेपोलियन पिज्जाज आए एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट पैंटॉस पिज्जाज, मतलब लॉट ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पिज्जाज केम डाउन. बट ये नए नए कॉन्सेप्ट्स क्यों आए? क्योंकि इनको पता था मार्केट तो है, बट द मार्केट वांट्स सम स्पेशलाइजेशन. अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जिसने पहले इटालियन स्टार्ट किया, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मूवर्स ऑफ इटालियन जिसने स्केल अप किया पैन इंडिया, कैफे टोनिनो भी है, बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं इटालियन में, क्या वो फेल हो गए आज? येस और नो? मतलब क्या आपको क्या लगता है, वो फेल हो गए हैं आज या फेल हो जाएंगे इवेंचुअली? Can I have it in the chat? Yes or no? हाँ, you're right, हरलीन सिंह जी, आप you're completely right. बिरयानी के ऊपर भी काफ़ी ब्रांड्स ने नीच डाउन किया. ठीक है. राकेश जी says yes. I'll be interested to answer that. Naveen says no. Ishita says yes. They are prone to fail down. ठीक है. Interesting. So अब नीशिंग डाउन का आप कॉन्सेप्ट समझना. आप एक लॉयल ऑडियंस कैप्चर करके लाइफ लॉन्ग ब्रांड को ग्रो कर सकते हो, राइट? एक लॉयल ऑडियंस कैप्चर करने में व्हाट डज इट टेक? इट हार्डली टेक्स 800 to 1000 लॉयल कस्टमर्स फॉर अ ब्रांड और अ बिग फाइन डाइन ब्रांड विद मैसिव ऑफ इन्वेस्टमेंट टू कीप रनिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? सो जो पहला इटालियन रेस्टोरेंट आया होगा, अगर इफ दैट वाज द बेस्ट इटालियन रेस्टोरेंट पॉसिबल, इफ दे केप्ट इनोवेटिंग ऑन देयर प्रोडक्ट एंड इटालियन नीश को उन्होंने नहीं छोड़ा, एंड एवोल्यूशन के साथ दे केप्ट इवॉल्विंग ऑल्सो लिटिल, येट उन्हें अपने मेन प्रोडक्ट्स को होल्ड रखा, दे विल नेवर टेंड टू फेल.
वाई? बिकॉज जब तक इटालियन बिल्कुल ही लोगों ने खाना नहीं छोड़ दिया ना इंडिया में, तब तक वो रेस्टोरेंट चलते रहेंगे अगर वो कंटिन्यूसली कस्टमर सर्विस और इन सब एस्पेक्ट्स पे काम करते गए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनने वो मार्केट कैप्चर कर लिया है. वॉट दे हैव बिकम इज कॉल्ड अ थॉट लीडर. वो लोग एक थॉट लीडर बन गए हैं, सब्जेक्ट टॉपिक एक्सपर्ट. वो इटालियन के लिए सब्जेक्ट टॉपिक एक्सपर्ट बन गए हैं, फिर पिज्जाज के लिए जो आए थे वो पिज्जाज के लिए बन गए हैं. बट येट इंडिया में सी पीपल, न्यू पीपल आर बॉर्न एवरी डे. सो यंग पीपल कम आउट एवरी डे. ठीक है, एवरी डे इन द सेंस थोड़े थोड़े टाइम में यंग पीपल का पॉपुलेशन जनरेशंस कीप मूविंग ऑन. सो द यंग पीपल विल वांट टू नीश डाउन ऑलवेज. सो नीशिंग डाउन इज एन एंडलेस प्रोसेस. आप यूएस की हिस्ट्री में देखेंगे तो एंडलेस लेवल ऑफ न्यूयॉर्क स्लाइस पिज्जा, स्लाइसेस पिज्जाज और भी फर्दर नीश डाउन हो गए, नीशिंग डाउन हो चुकी है. सो जितनी यंगर पॉपुलेशन आती रहेंगी उतनी नीशेस बनती रहेंगी. जब तक ये पूरी हैबिट ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ क्यूजीन डाई आउट नहीं होती, तब तक वो रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट या फिर जो थॉट लीडर है वो डाई आउट नहीं होगा. अगर वो रेस्टोरेंट लॉयल्टी मेंटेन कर सका, और लॉयल्टी कैसे मेंटेन करेंगे वो हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे. आई हैव क्वेश्चंस इन द चैट. Niching down definitely does have easier scale, but doesn't that limit customer base, and customers can easily get bored? And very brilliant. So that's a brilliant question by Anish Kapoor. Anish, I have just the example in the coming slides for this. How to make sure that your customer never gets bored. ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी presentation start करी थी ये बोल के कि we have to be fun, right? And I'm going to talk about how do you create a culture. How does a restaurant become a thought leader? हम कैसे culture बनाएंगे, right? Then marketing AIPB asks, can I ask my restaurant manager to join it? 100%, yeah, you can ask anybody to join it. If you have your cousins, friends, relatives, I'm completely fine with that. Anybody who's keen to learn, I'm more than happy for them to join in. Commonality against all the brands that mentioned is also being heavily funded and have funds kept aside for customer acquisition. Brilliant question. No, they don't. I'll show you a couple of them. Chai Sutta Bar does not have any funding. Wow Momos does have funding. Theka Coffee, Starbucks does not have any external funding. Subway does not have any external funding. I understand that these guys have funds kept aside for their customer acquisition. Let's talk about Barbecue Nation. Okay, yes, it does. Sayajik Group का owning है. But Behrouz Biryani and Oven Story, they started off with a brand, although they have funding, but you are seeing them where they are right now. अगर यही मैंने आपको less successful brands बताए होते, there are a lot of brands जिनके 15-20 outlets हैं, 50 outlets हैं. जैसे चाय कापी एक brand है जिसके around 32 outlets हैं as of today. Now Chai Kapi does not have funds kept aside. So I'm also going to tell you how do you acquire a client. This is to Kavan. I'm going to tell you how to acquire clients in the coming slides at the lowest cost possible, right? How to create a culture such that you can get to these brands. See, scalability, अगर आप bootstrapping methodology से करते हो, you earn and you spend and you earn and you spend, या आप उस methodology से करते हो तो generally slow होती है. फिर सेकंड मॉडल होता है फ्रेंचाइजिंग, वो रिलेटिवली उससे फास्ट होता है. फिर होता है उससे बड़ा मॉडल इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टर्स को लेना, तो फंडिंग जिसे कहते हैं. सो वो बहुत ज़्यादा फास्ट मेथोडोलॉजी ऑफ स्केलिंग अप होती है. इफ़ योर बिजनेस मॉडल इज सॉर्टेड, कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस इज सॉर्टेड, तो आप स्केलेबिलिटी भी कर सकते हो एंड यू कैन इवन फोकस ऑन फंडिंग्स. दीज ब्रांड्स चोज टू स्केल अप रियली फास्ट, बट अ लॉट ऑफ देम इवन स्केल्ड अप विद बूटस्ट्रैपिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें लेजेंडरी ब्रांड्स की, फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स एंड KFC, डोमिनोज फॉर दैट मैटर, हल्दीराम्स फॉर दैट मैटर, इनने फंडिंग्स नहीं ली, इनने ट्रेडिशनली बूटस्ट्रैप करके ग्रो किया. बट आई एग्री, टाइम इज ऑफ एसेंस इन दिस जनरेशन, टाइम इज वेरी फास्ट. चाय सुट्टा बार हैज नॉट टेकन एनी फंडिंग टिल डेट. सो देर आर ब्रांड्स ऑफ ऑल द एग्जाम्पल्स. ठीक है, let me move ahead. So niching down, I hope सबको concept समझ आ गया हो. नहीं भी आया हो तो no worries, I'm gonna like मैं towards the end और ज़्यादा अच्छे से आपके questions answer कर लूँगा. And so being known for a concept, being known for a product, being the head of a culture, being a thought leader, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बात करी यहाँ पे. अब मुझे एक आप बात बताइए, आप क्या करेंगे जब आप मान लीजिए बहरूज बिरयानी का एक ब्रांड है. अब बहरूज बिरयानी स्पेशलाइजेज इन बिरयानी. हाउ विल यू स्पेशलाइज फर्दर? लाइक जिन्हें मेरी स्लाइड्स पढ़ ली हो वो इग्नोर कर सकते हैं एक बार के लिए. बट हाउ डज सो मुझे कल बहरूज बिरयानी से compete करना है, या compete नहीं करना, बट मुझे बिरयानी में कुछ ऐसा लॉन्च करना है. बट बहरूज बिरयानी इज ऑलरेडी देयर, एक नीश एग्जिस्ट करती है, बहरूज ने अपनी बिरयानी में नीश बना रखी है. कैन समवन गिव मी आइडियाज कि हम कैसे उस मार्केट में नीश डाउन कर सकते हैं? Anyone?
Okay, Pranay Kothari says identify the gap, customer issues. ठीक है, ठीक है. Does anyone want to go forward? Any idea of how can I start a new brand in biryani? Brilliant. I like Naveen's idea. Naveen says make region specific biryani like Hyderabadi biryani. So Naveen, your answer is very good and I will tell you the pros and cons of it. जब आप नीच डाउन करते हो ना, सो जैसे बिरयानी एक sort of कैटेगरी है, अब आप नीच डाउन करते हो हैदराबादी बिरयानी में, दो चीज़ें होती हैं. इट्स ऑलवेज अबाउट कितना शेयर ऑफ द केक. एक केक होता है, ये केक आपके सामने पड़ा है इन द सेंस कि ये बिरयानी का केक है और उससे छोटा केक है साइज में हैदराबादी बिरयानी का. आप वो कितना केक खा सकते हो का मतलब है कितने कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल आई कैन ईट द होल केक, दैट्स ब्रिलियंट. कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है हैदराबादी बिरयानी में, बट आई कैन ईट द होल केक. बट द सेकेंड पॉइंट इज हाउ बिग इज द केक. कितने एग्जिस्टिंग डिमांड है या कितना लोग आपको लगता है हैदराबादी बिरयानी के लिए, will that be a profitable model in the future? You will have to analyze that कि हैदराबादी बिरयानी इतना कल्चरल शिफ्ट. सो इन टीयर 1 सिटीज हैदराबादी इंट्रोड्यूस करना इज वेरी गुड बिकॉज हैदराबादी की टारगेट सेगमेंट्स दो हो सकती हैं, एक तो एक्सपेरिमेंटल और एक हैदराबादी लवर्स. नाउ हैदराबादी लवर्स आपको नॉर्थ में कम मिलेंगे बट सेंट्रल इंडिया, दिल्ली, टीयर 1 सिटीज में ज़्यादा मिलेंगे. सो सिटी टू सिटी इट कैन डिपेंड, बट रिमेंबर टू ऑलवेज स्टार्ट इन अ सिटी. अगर आप अपनी सिटी में प्लान आउट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी सिटी का सिनेरियो कंसिडर करना. अगर आप दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर इन टीयर 1 सिटी से हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो सकते हो बिकॉज पीपल आर विलिंग टू ट्राई मोर. ऑन दी अदर हैंड टीयर 2 सिटीज़ थोड़ा सा कम लेवल ऑफ ट्राइंग होता है, रिजिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है. टीयर 3 में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होती है तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं. टीयर 4 और छोटे टाउन्स में, एंड दैट बिलीव मी, अब आपको लग रहा होगा छोटे टाउन्स में कौन करेगा, बट बिलीव मी वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स ऑफ F&B नाउडेज इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द टाउन्स, राइट? नाउ द पॉइंट इज कि आपको वो देखना है कि वो केक कितना बड़ा है खाने के लिए. अगर एक मतलब उसमें कॉम्पिटिटर्स नहीं भी हैं, सो समबडी सेड इंट्रोड्यूस वेज बिरयानी, समबडी सेड, सो आपको मार्केट एनालिसिस करके नीच डाउन करना है. बट आई थिंक ऑल द आंसर्स वर वेरी गुड. आई लाइक अनीश's आंसर दैट यू नो स्टेट स्पेसिफिक आप कर लो. नवीन ऑल्सो सेड हैदराबादी कर लो. Then Ronit said fresh biryanis is Behrouz biryanis frozen, brilliant. So one of the brands that did something similar, they said कि यार आप बिरयानी सेल करते हो, आप करो. जैसे पिज्ज़ा में वुड फायर ओवन पिज्ज़ास के बाद नीश आ गया था पिज्ज़ास के बाद, वैसे ही बिरयानी में एक ब्रांड ने कहा कि यार आई विल गेट फ्रेश एंड दम बिरयानीज. दम बिरयानीज आप नहीं सेल करते हो और उनको ये रियलाइज हुआ कि दम बिरयानी का मार्केट है, प्लस हम पैकेजिंग से अपना विजुअली कॉन्सेप्ट वो अलाइन कर लेंगे. सो दिस इज वेयर माई नेक्स्ट स्लाइड कम्स इन प्लेस. 1 second. So when you are a new brand that wants to launch biryani and you know कि Behrouz biryani is there, so what you can do is you can pick on a niche जिसका market आपको पता है, हाँ यार इस चीज़ का market होगा in my city, एंड इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल भी नहीं है. लोग मार्केट होने का मतलब होता है एक तो लोग ट्राई करेंगे फर्स्ट टाइम एंड हैबिट बनाएंगे. हैबिट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस मार्केट साइज कितना बड़ा है, उसका मतलब है कि कितनी हैबिट यहाँ के लोग बना सकते हैं उस चीज़ के लिए. तो बिरयानी लवर्स genuinely can make a habit of dum biryani, right? So there came a brand which is called biryani by kilo, and it used its ये इन्हें लोगों में भी दिखाया विजुअली. ये इसी कुल्हड़ टाइप पॉट में देते हैं, मिट्टी के पॉट में देते हैं बिरयानी सर्व करके और दम बिरयानी बनाते हैं. तो इनका कॉन्सेप्ट वो है. Nikhil Joshi says, but biryani by kilo is not doing well in tier 2 cities. Actually, biryani by kilo is doing really well in tier 2 cities because 2-3 cities that I know of, I've seen their like parameters, they're doing well. Say Jaipur, where I'm based out of, Indore, there are a couple of other cities where biryani by kilo is doing well. But yes, there are a couple of tier 2 cities where biryani by kilo is not doing well. That is because of the market analysis. आपको ये देखना पड़ेगा in those cities is Behrouz biryani also doing well. जहाँ पे बिरयानी ईटर्स ही नहीं हैं तो उसके अंदर आप नीच डाउन नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि यार बिरयानी हाउ डू आई पुट इट कि बिरयानी ईटर्स ही इतने नहीं हैं, यहाँ पे behrouz बिरयानी भी सक्सेसफुली नहीं कर रहा है, तो नीच डाउन करना और मतलब जो 1000 लोगों का मार्केट है behrouz बिरयानी का, जिससे behrouz बिरयानी नहीं सफाइस कर पा रहा, तो उसमें से जो नीशिंग डाउन मार्केट है वो तो और छोटा होगा ना.
सो अगर वो 1000 का ही फिगर बहुत कम है, आपको पता है बहरूज बिरयानी ही अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप उसमें नीच डाउन भी नहीं करोगे। एंड हाउ डू यू एनालाइज हाउ वेल इज बहरूज बिरयानी डूइंग इन दैट सिटी और नॉट? मैं आपको थोड़े पैरामीटर्स दे देता हूँ फ्रंट एंड यूजर की तरह। आप जोमेटो पे जाओ, नंबर ऑफ रिव्यूज देखो, गूगल पे जाओ, क्लाउड किचन नहीं है तो गूगल पे जाओ, उनके नंबर ऑफ यूजर्स या नंबर ऑफ रिव्यूज देखो। नंबर ऑफ रिव्यूज जब आप कंपेयर करते हो सिटी टू सिटी, आप चाय सुट्टा बार के बॉम्बे आउटलेट वर्सेस इंदौर आउटलेट के नंबर ऑफ रिव्यूज करना, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 का ही करो, बहुत सारी सिटीज़ का करो। और बिरयानी का खाली बहरूज ब्रांड नहीं है, अलग अलग सिटीज़ ब्रांड्स हैं। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल मेथडोलॉजी बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में घुस जाओ, उनकी ये सब चीज़ें करो, नहीं। व्हाट यू शुड डू इज गूगल रिव्यूज़ देखो, जोमेटो रिव्यूज़ देखो, और कोई पब्लिक पोर्टल रिव्यूज़ देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, see what pages have more followers, of course थोड़ा fake followers का consciousness रखना, but Google पे किसके ज़्यादा reviews हैं, किन cities पे। And see again, there is no good number of Zomato reviews for an outlet. Why? Because Chai Sutta Bar just outlet will have thousands and thousands of Zomato reviews, because the cost of a product for Chai Sutta Bar is just 10 rupees. But Behruz Biryani का cost of a product is 300-400 rupees से starting. So I can never say, मतलब अब वो इतना gap of entry in the market है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे वो करते हैं इन द नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स। बट वो प्राइस पॉइंट इतना ज़्यादा है कि फॉर सम ब्रांड 100 का फुटफॉल पर डे इज गुड, फॉर सम ब्रांड्स 500 का ऑल्सो इज नीडेड। सो यू कैन नॉट, बट यू कैन कंपेयर टी आउटलेट्स। मतलब जैसे अगर आप टी का मार्केट देख रहे हो तो टी के आउटलेट्स कंपेयर कर लो, आप बिरयानी का मार्केट देख रहे हो तो बिरयानी के आउटलेट्स कंपेयर कर लो, बिरयानी के साथ साथ आप सिमिलर मार्केट्स कंपेयर कर लो। फॉर एग्जाम्पल बिरयानी हो गया तो आप फॉर साउथ इंडियन मार्केट थोड़ा सा कंपेयर कर लो, साउथ इंडियन का थोड़ा सा कॉमनैलिटी होता है। कपल ऑफ मार्केट्स लाइक दीज व्हेन यू सी, देन यू विल बी एबल टू सॉर्ट ऑफ डिफाइन बेटर, ठीक है। एंड see, apple to apple comparison is yes a way to say it, but you don't always get apples to compare apples, है ना। So you might want to select some similar brand, try to find, जैसे for example अगर मैं noodles का market में जा रहा हूँ, मैं noodle driven एक product बना रहा हूँ, तो मैं Chinese check कर सकता हूँ। I can see how good are Chinese brands doing by their Google reviews, number of Google reviews, and compare it city to city। तो थोड़ा बहुत ये बहुत qualitative analysis है, इसका कोई parameter नहीं होता, but हाँ मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को देख के आप एक एनालिसिस ड्रॉ आउट कर सकते हो। आपको चाय सुट्टा बार को चाइनीज आउटलेट से नहीं कंपेयर करना। ऑफ कोर्स द चाइनीज आउटलेट विच इज प्राइस एट लाइक 100-150 का मिनिमम प्रोडक्ट will have lesser reviews than Chai Sutta Bar, which has high footfall. So apples to apples is pretty much a good summary. Thanks, Pranay. So again, visually आप जो भी concept कर रहे हैं उसको visually differentiate करना। I'll tell you how in the next slide. So how to choose a niche? See, एक बहुत अच्छी स्टोरी सुना रहा हूँ, बिकॉज स्टोरीज लोगों को याद रह जाती है, यू नो। आई विल मैं अंकित आपका एक मैसेज पढ़ता हूँ जस्ट आफ्टर आई एक्सप्लेन दिस, एंड हाउ जेन्युइन डू यू थिंक आर रिव्यू। सी राकेश, गूगल रिव्यूज़ की बात करें, अ कंपनी कैन फोर्ज, अभी गूगल का एल्गोरिदम बहुत स्ट्रांग हो गया, तो कंपनीज 5, 10, 15 मैक्सिमम 20-25 रिव्यूज़ फोर्ज कर सकती है। बट गूगल का एल्गोरिदम ऐसा हो गया कि आपको वो कंप्लीट वो रिव्यूज़ हटा देती है। अगर आप सिमिलर आईपी एड्रेस से रिव्यूज़ कर रहे हो, जो फेक रिव्यूज़ करते हैं, वो रिव्यूज़ वो हटा देती है। तो गूगल का एल्गोरिदम हैज़ गॉटन स्ट्रॉन्गर। सो आई विल से गूगल का एल्गोरिदम इज नाउ मोर ट्रस्टेबल देन इट वॉज। एंड देयर आर अदर रिव्यूइंग साइट्स ऑल्सो, स्विगी देख लो, जोमेटो देख लो। तो आई थिंक स्टिल आई वुड प्रेफर गूगल ओवर जोमेटो एंड स्विगी, बट स्टिल आप सबका देख लो। एक में फेक कर सकते हैं, सारों में नहीं फेक कर सकते, राइट। एंड गूगल में भी 10, 15, 20, नॉट मोर देन दैट। इट्स वेरी टफ टू फेक इट दीज डेज। फेक रिव्यूज ऑन गूगल हैव लिटरली गॉन डाउन क्योंकि आईपी ट्रैकिंग चालू कर दी गूगल ने। हाउ टू चूज अ नीश नाउ, इसमें क्या है, फाइंड प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग सर्व्ड अराउंड। देख लो कौन से प्रोडक्ट्स अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बस एक बात याद रखना कि आपको हमेशा कंपटीशन में नहीं उतरना। इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बता रहा हूँ। सो एक इंसान था, वो शूज़ सेल करने आया था इंडिया में अर्ली 1900s के अंदर, जब जूते नहीं पहनते थे लोग। तो उसने इंडियंस, मतलब वो इंडियन नहीं था, उसने इंडियन वो इंडियन नहीं था, बट उसने पूछा अपने फ्रेंड से कि यार मैं यहाँ शूज़ सेल कर सकता हूँ क्या इंडिया के अंदर। सो वन ऑफ हिज फ्रेंड सेड, यार पागल है क्या कर रहे हैं, यहाँ लोग जूते पहनते ही नहीं है, आर यू मैड, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब व्हाई डू यू वांट टू टेक सच अ ह्यूज रिस्क। And then the second person told him that, second friend of his told him complete opposite thing. यार कितना सही मार्केट है, कितनी सही मार्केट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ लोग शूज़ पहनते ही नहीं है। बट ये दोनों स्टोरी बहुत 1 और 0 बाइनरी हो गई। आज अभी तो शेड्स ऑफ ग्रे चलता है, ब्लैक और वाइट इतना होता नहीं है।
बट ही चूज टू कम इन इंडिया एंड ऐसा कहते हैं, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज़ रियल, ऐसा कहते हैं दैट द ब्रांड ओनर वॉज बाटा, मतलब बाटा इज़ एक्चुअली शेक ब्रांड, इट्स नॉट एन इंडियन ब्रांड, हम सबको लगता है इंडियन है बट शेक ब्रांड है. सो ओवरऑल दैट बीइंग सेड, ये इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, बट वो आपको देखना पड़ेगा शेड ऑफ ग्रे क्या है, कि शूज़ जो है वो इस इंडस्ट्री में मतलब क्या एक कस्टमर शू की हैबिट बना सकता है, तो क्या एक कस्टमर उस प्रोडक्ट की हैबिट बना सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा. ये बात याद रखिएगा कि 10 to 20% कस्टमर्स नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं. मतलब अगर 1 लाख लोगों की ऑडियंस है, सो 10,000 से 20,000 कस्टमर्स नई चीज़ें ट्राई करेंगे, बट 5,000 ही हैबिट बना पाते हैं ऑन एन एवरेज. एक जनरल, इसको नॉर्मल कर्व थ्योरी कहते हैं, आप सेव कर सकते हो, ये मैं जार्गन बाद में कभी समझाऊंगा या गूगल से भी आप समझ सकते हैं. बट 10 to 20% लोग ही नई चीज़ें इमीडिएटली ट्राई करते हैं. यू वोंट फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल ट्राइंग द न्यू. मेजरली 80% पीपल वो कम चीज़ें ट्राई करते हैं, वो रेगुलर लाइफस्टाइल में प्रेफर करते हैं. एंड बट जब वो हैबिट बन जाती है उन 5 या 10% पीपल की, उसके बाद वो 80% लोग फॉलो करते हैं धीरे धीरे. चाहे आप ये पब्स का या क्लब्स का कल्चर कह लो या किसी भी चीज़ का कल्चर कह लो, इट ऑलवेज की मतलब पहले आपके 5%, यू जस्ट नीड 2 to 5% ऑफ द होल, मतलब 2 to 5% भी बहुत ज़्यादा बोल दिया. यू जस्ट नीड 1,000 लॉयल कस्टमर्स ऑफ योर ओन. वंस यू क्रिएट 1,000 लॉयल कस्टमर्स, जिसको कहते हैं ब्रांड एडवोकेट्स, तो आपका कॉन्सेप्ट अपने आप स्प्रेड हो जाता है. वो ब्रांड एडवोकेट्स कैसे बनाते हैं वो भी आई टेल यू इन दी कमिंग स्लाइड्स. जब आप एक नीश प्रोडक्ट बना दो, प्लीज रिमेंबर द वर्ड डिस्कवरी प्रोडक्ट. डिस्कवरी प्रोडक्ट क्या होता है? चाय सुट्टा बार को जाने के लिए, कुल एक चाय पीने के लिए मेरी कॉस्ट आती है 10 रुपीज़, राइट? एंड इट्स अ कुल्हड़ बेस्ड मॉडल. तो उनका जो 10 रुपीज़ में भी व्हाट दे आर गिविंग मी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द अदर कंपेटिटर्स आर गिविंग, राइट? नाउ डिस्कवरी प्रोडक्ट के रूल्स होते हैं, बेसिकली उसकी कॉस्ट बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए. आपको डिस्कवरी प्रोडक्ट से पैसे नहीं, मतलब यू डोंट हैव टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्कवरी प्रोडक्ट्स. चाय सुट्टा बार का गोल इज नॉट टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दैट 10 रुपीज़. द गोल ऑफ दैट 10 रुपी टी इज टू जनरेट ट्रैफिक ऑन योर ग्राउंड. मतलब उसमें क्या है, कन्वीनियंस कॉस्ट आपने कम कर दी. एक इंसान को चाय सुट्टा बार जाने के लिए डज नॉट हैव टू थिंक ट्वाइस, राइट? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 रुपीज़ का कुछ लॉन्च कर दो, ब्रांडिंग भी कुछ होती है, ब्रांड वैल्यू भी कुछ होती है, बट ट्राई टू मेक इट ईजियर फॉर अ कस्टमर टू कम टू योर डोर स्टेप with one discovery product, right? I will just answer marketing AIPB का question here as soon as I finish this. So discovery product जब आपने बना दिया है तो it becomes all the more easy. discovery product ऐसा होना चाहिए जो जब वो याद करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अवन पिज्जाज, तो आपका ही नाम आना चाहिए. 1 सेकेंड, इसका प्राइसिंग कंफर्टेबल होना चाहिए. एटलीस्ट एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग कंफर्टेबल होना चाहिए. हो सकता है आपके सारे अवन पिज्जाज आर एक्सपेंसिव, बट एक अवन पिज्जा सस्ता होना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट उस अवन पिज्जा के कारण तो फुटफॉल आ जाए, यू नो. आपका ब्रांड भी डिस्कवरी प्रोडक्ट के जितना कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रांड इज अराउंड द डिस्कवरी प्रोडक्ट. आई गिव यू एग्जाम्पल्स. सो KFC, केंटकी फ्राइड चिकन, सबवे, सब के ऊपर आपका ब्रांडिंग जितनी ज़्यादा उस डिस्कवरी प्रोडक्ट के ऊपर हो, इट्स बेटर. नाउ यू विल से कि यार मैकडोनल्ड्स का तो बर्गर के ऊपर नहीं है. यू वेरी राइट, मैकडोनल्ड्स का नाम बर्गर के ऊपर नहीं है, बट पूरी ब्रांडिंग बर्गर के ऊपर थी, और हैमबर्गर्स के ऊपर थी US में. बट देयर वर इन द अर्लियर एरा, देयर स्टिल कुड हैव बीन ब्रांड्स, पुराने मतलब आज से 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले ऐसे ब्रांड्स हो सकते थे जो एक डिफरेंट नाम से चालू करते. बट इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ नेम ऑफ अ ब्रांड दैट रिप्रेजेंट्स योर कॉन्सेप्ट, राइट? उससे आपका मार्केटिंग बहुत ईजी हो जाता है. सो डिस्कवरी प्रोडक्ट के अराउंड ब्रांडिंग होनी बेटर है. आपके ब्रांड के विजुअल्स और डिस्कवरी प्रोडक्ट के अराउंड पूरा ब्रांडिंग होना चाहिए. नाउ दैट ऑल ऑफ यू कैन सी माई स्क्रीन, आई विल शो यू समथिंग दैट ब्रांड्स रीच आउट टू मी फॉर, और जिसके ऊपर मैं बनाता हूँ ब्रांड्स के लिए. दिस इज कॉल्ड अ ब्रांड आइडेंटिटी गाइडलाइन. ये बहुत ज़रूरी होता है स्केलेबल ब्रांड्स के लिए, बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव दिस, it's just a waste of your time to scale up, because you can scale up without it, but it's very tough. Matlab, it makes your like work all very very tough. So this is the brand identity of a brand called the Momo Story that we worked on and that we've been consulting. इस ब्रांड का पहले नाम होता था मोर देन मोमोज, एंड द ब्रांड का कॉन्सेप्ट वाजंट फाइनलाइज्ड. सो वी ट्रांजिशन दिस ब्रांड इनटू द मोमो स्टोरी, जहाँ पे हमने एक मोमो ड्रिवन ब्रांड बनाया. पहले भी मोमो था नाम के अंदर, बट इट वाज मोर देन मोमोज. नाउ मोर देन मोमोज का मतलब होता है इट्स टेकिंग अवे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट. यू आर नॉट गिविंग मोमोज दैट इंपॉर्टेंस. नाउ ये Tier 2 एंड Tier 3 में ही बेस्ड है ब्रांड पूरा, क्योंकि Tier 2 और Tier 3 में वाव मोमोज का अभी भी पेनिट्रेशन नहीं है.
कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज ब्रांड ऑफ मोमोज नहीं है, हर सिटी में है बट पैन इंडिया स्प्रेड में कोई भी नहीं है. सो इनका हमने पूरा मास्केट प्लानिंग, एवरीथिंग फ्रॉम द मास्केट प्लानिंग टू द प्रोडक्ट नेमिंग टू द कलर्स ऑफ द ब्रांड, पूरा चाइनीज. सो येलो, रेड, पर्पल, येलो एंड रेड आर कलर्स दैट इग्नाइट योर हंगर. एक कलर साइकोलॉजी व्हील होता है, आई विल शो इट टू यू. दिस इज कॉल्ड अ कलर साइकोलॉजी व्हील. जब आप अपने ब्रांड के लिए ब्रांडिंग करते हैं, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कलर्स चूज कर रहे हैं. डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, हल्दीराम, एवरीबडी हैज अ कलर गाइड. ये कलर साइकोलॉजी व्हील होता है, इफ यू गाइस कैन सी इट. इसमें हर कलर का एक इमोशन होता है जो वो आपको देता है, राइट? Siddhant, I'm sorry, but we can only see the how to choose a niche screen. Oh, you're still there? Okay, Yeah, wait. yeah. 1 second. Sorry. I'll just correct this. How do I sort of share my whole screen? Give me a second. Yeah. How do I share my whole screen here? Okay. Can you guys see this? Can you guys see this? Yes. Actually, now we can. Yeah. So I'll just repeat myself. Sorry. मतलब I thought ये share हो रहा है. The Momo Story, this is the brand. More Than Momos हुआ करता था, हमने इसको The Momo Story पहले प्रोडक्ट फोकस किया. देन इस ब्रांड की पूरी ब्रांडिंग, दिस इज अ चाइनीज गाय बट अ लिटिल मोर इन इंडियन अटायर, पगड़ी, एंड येट इज अ स्टोरी टेलर. तो ब्रांड की ब्रांडिंग ऐसे हुई जहाँ पे कलर्स भी हमने कलर साइकोलॉजी व्हील के हिसाब से, येलो एंड रेड इग्नाइट हंगर, रेड स्टैंड्स फॉर अ लिटिल अग्रेसिव मसाला स्पाइस, and blue, this purple is a very differentiable tone of purple which stands for a little sweet. So Chinese food people like because it's very spicy and sweet at the same time. कभी कभी sweet touches होते हैं. So हमने ये color psychology wheel का भी मैं आपको share कर देता हूँ. Just give me a second. I'm gonna share the color psychology wheel. 1 second. This is called a color psychology wheel. Can you see it? Every color has a, आप गूगल पे कर सकते हैं कलर साइकोलॉजी व्हील एंड यू विल गेट इट. सो एवरी कलर हैज टू हैव. अब ऐसा नहीं हो कि आपने कॉन्सेप्ट बना दिया, नेम कर दिया ब्रांड का, एंड देन यू आर लाइक आउट इन थिन एयर. मतलब आपने बस नाम डाल के हर जगह प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो. ऑल दी ब्रांड्स लाइक हल्दीराम्स, मैकडोनल्ड्स, KFC, एवरीबडी हैज अ कलर गाइड एंड वेरी साइकोलॉजिकली ड्रिवन कलर गाइड. तो आपको कलर के हिसाब से देखना है कौन सा कलर मेरे ब्रांड के इमोशंस और मेरे नीश के इमोशंस प्रेजेंट कर रहा है. मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड फॉर एवरी F&B ब्रांड्स. किसी भी इंडस्ट्री में इतना काम आए ना है, F&B में बहुत काम आता है ये गाइड. आई कम बैक टू द गाइड अगेन. 1 second. Yes, here's the guide. So इसमें एवरीथिंग फ्रॉम कलर डेफिनेशन, ये रहा ऑल्टरनेट ब्रांड के लोगों को कैसे यूज़ करना है डिफरेंट कलर्स के ऊपर, किस किस कलर्स पे यूज़ करना है, किस पे नहीं करना है, ब्रांड की स्टोरी क्या है, ब्रांड के कलर पैलेट्स क्या हैं, साइकोलॉजी क्या है, ये सब डिफाइन करना पड़ता है. फॉन्ट फैमिली क्या यूज़ होगी. फॉन्ट फैमिली भी, जैसे दिस ब्रांड इज अबाउट देसी चाइनीज़ फूड, मतलब इसका एक मॉडल डिफरेंशिएशन इज देसी चाइनीज़ फूड बट मोमो इज द डिस्कवरी प्रोडक्ट. नाउ सो देसी चाइनीज़ फूड के हिसाब से इसका पैटर्न भी बनता है. शो यू. फॉन्ट फैमिली इज अ हांगकॉन्ग हसल विच इज़ अ चाइनीज़ ड्रिवन इंग्लिश फॉन्ट. ये रीडेबल फॉन्ट्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड लेवल. आपकी चाहे पैकेजिंग हो, स्टोर के इंटीरियर्स हो, सोशल मीडिया ग्राफिक्स हो, एवरीथिंग हैज़ टू बी अराउंड दिस. यूनिफॉर्म्स हो, एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड बाय दिस. दिस इज द थर्ड लेवल फॉन्ट विच इज देयर इन पैराग्राफ्स. फिर हम ब्रांड स्टडी करके व्हाट वी क्रिएट इज कॉल्ड अ ब्रांड आइडेंटिटी पैटर्न. ये पैटर्न क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है और आपके कॉन्सेप्ट को विजुअली आने को देता है. सो सोशल मीडिया ग्राफिक्स इनके ऐसे दिखेंगे, इनके आई शो यू फर्दर, इनकी स्टेशनरी एंड मर्चेंडाइज ऐसी दिखेगी, इनकी कैरी बैग्स ऐसे दिखेंगे, यूनिफॉर्म्स ऐसी होंगी. सो इसमें क्या है, ब्रांड के अंदर इनके 3D मॉडल स्टोर्स ऐसे होंगे, इनके ये कायोस्क स्टोर्स हैं, ये इनके स्टोर मॉडल स्टोर्स हैं. फिर इनके पैकेजिंग्स ऐसी होंगी, पैकेजिंग्स की गाइड क्या है. तो ये कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. नाउ अब मेरा मतलब आई डोंट वांट कि आप हमेशा मेरे जैसे ब्रांडिंग गाइड, ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट को ढूंढें या फिर हमेशा ये चीज़ करें, बट टू द लीस्ट आपको एटलीस्ट कलर एंड फॉन्ट की एक्टिविटी तो करनी ही चाहिए एंड लोगों को भी कोहेरेंट बनाना चाहिए इन सब चीज़ों से. उससे क्या होता है, जब आपका ब्रांड रिप्रेजेंट होता है तो इट इज़ अ होल बिग लाइक न्यू गेम ऑल टुगेदर. So I'll get back to my presentation. So this was visually explaining what the brand looks like. Presentation कहाँ है, ये. So now that you've chosen a discovery product, we've actually done this for Chokhi Rani also. मैं आपको एक और चीज़ लास्ट दिखा देता हूँ so that आपको better समझ आ जाए.
We've actually done this for roughly 42 brands till date. Chokhidani is also one of them. One second. Where is the? Can't see it. Yes, Zoom is here. Rima, I'm not getting the option of yes, got it. So share screen. I will share one more, which is yes. Google Meet is easier than Zoom Meet. Yeah. So this is Chokhidani Group. इनका भी पूरा representation, color theory, and after 33 years, this brand realized कि हमें scalability में issue आ रहा है. So after 33 years, this was all defined for them. ये वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल मांडना आर्ट है विच वॉज क्रिएटेड फॉर द पैटर्न सो दैट जो इनका कॉन्सेप्ट ऑफ राजस्थानी कल्चर इन लग्जरी एंड इंटरनेशनली उनके रेस्टोरेंट्स में लंदन में दुबई में कैसे यूज़ होगा राजस्थानी कल्चर इंडिया में रिजॉर्ट्स में कैसे होगा इंडिया में विलेजेस में सॉरी इनके विलेज मॉडल में और इंडिया में इनके डेजर्ट कैंप मॉडल में कैसे यूज़ होगा एंड देन वी मेड व्हाट इज़ कॉल्ड द होल ब्रांड की कोहेरेंस सो हॉस्पिटैलिटी F&B सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है. We've done over 42 F&B and hospitality projects. So in case somebody wants to see it, they can always like ping me on my Instagram. I'll send them a link or maybe like assign someone from my team to see it. Now, coming back to the presentation. Yes. How to choose a niche. Now, from how to choose a niche, one of the things that we have to realize is that why do you want to choose a niche? वन इज़ रिकॉल वैल्यू एंड सेकंड इज़ थॉट लीडरशिप कि आपको नीश इसलिए चाहिए बिकॉज आपकी एक तो रिकॉल वैल्यू ब्रांड की ज़्यादा होनी चाहिए जब कोई सब्जेक्ट मैटर के बारे में सोचे कोई बिरयानीज़ के बारे में सोचे तो आपका नाम आना चाहिए फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली कोई अगर मैं आपको बोलूँ कोल्ड ड्रिंक तो आपको कोका कोला का नाम आता है वो थॉट लीडरशिप है. अब कोल्ड ड्रिंक्स का मार्केट सैचुरेट हो गया इसलिए कोई भी नई कोल्ड ड्रिंक्स या कोई नई ड्रिंक्स आती है बेवरेजेस तो वो नए कॉन्सेप्ट के ऊपर आती है जैसे बोट है राइट बोट इज़ ऑल्सो अ बेवरेज ब्रांड एंड ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड. सो बोट करके जो बेवरेजेस आती हैं पेपर बोट करके जो वो नॉस्टैल्जिया के ऊपर ड्रिंक्स हैं वो हमारे नॉस्टैल्जिक ड्रिंक्स के ऊपर बेस्ड हैं इसीलिए वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो पाए इसीलिए इट्स परफॉर्मिंग वेल क्योंकि उनने एक ऐसा नीश मार्केट पकड़ा जिसका मार्केट भी था और उसमें कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं था नॉस्टैल्जिक प्रोडक्ट्स में. So thought leadership and recall value are two reasons why you should choose a niche. How do you become a thought leader? मतलब आपको थॉट लीडर कैसे बनना है कि आप उस सब्जेक्ट टॉपिक के ऊपर कैसे जाने जाएंगे एक्सेप्ट देन जस्ट ब्रांडिंग एंड डूइंग अ नेम. आपको उस थॉट लीडरशिप के ऊपर आप वर्कशॉप्स भी करा सकते हैं. यू कैन एक्चुअली डू फन इवेंट्स अराउंड द थॉट लीडरशिप वर्कशॉप. जब ब्लू टोकाई इंडिया में आया था तब कॉफ़ी बीन रोस्टिंग बहुत कम जगह होती थी. CCD वॉज द ओनली ब्रांड CCD बरिस्टा वॉज द ओनली ब्रांड्स जो फाइन डाइन के अंदर जाने जाते थे बट कैजुअल डाइन के अंदर देयर वाज नो दिस थिंग सॉरी कैजुअल डाइन के लिए जाने जाते थे बट QSR के अंदर देयर वर नो कॉफ़ी ब्रांड्स एंड फाइन डाइन में भी नहीं थे. एंड इंडियन बेस्ड कॉफ़ी ब्रांड्स जो वाइड स्प्रेड थे कैफ़े कॉफ़ी डे के अलावा जो बीन स्पेसिफिक थे वो कोई भी नहीं थे. सो ब्लू टोकाई करके एक ब्रांड आया जिसने बोला कि आई विल बी बीन बेस्ड कॉफ़ीज वेयर आई विल टेल यू डिफरेंट ओरिजिनेशन की बीन्स. And when it got famous, it started getting famous because of its workshops. So when they started doing these different kind of beans, उनको ये समझ आया कि यार ये मार्केट तो है इस चीज़ के लिए बट इस मार्केट में अवेयरनेस नहीं है. सो किसी को इस वर्ड का मतलब पता है? यू कैन जस्ट टाइप येस और नो इन द चैट. रेनेसॉ कहते हैं इसको. Does somebody understand the meaning of renaissance? Yes, Bodhi says yes. Pranay says yes. Okay. It's okay if you don't because I'll be more than happy to explain it. I will explain it either ways. Resurgence is somewhere similar, not exactly the same. Renaissance, I'll tell you. Yes, Rakesh, thank you so much. So Renaissance ka somewhere it means badlav. It's spelled as Renaissance, but it's Renaissance. So Renaissance का मतलब होता है revolution, जिसको revelation भी कहते हैं. Revolution, Renaissance. It's a phase of change. Very well put, Pranay. Now adaptation is what follows after that. So काफ़ी ब्रांड्स में क्या होता है वो ब्रांड एक ज़्यादा आगे स्टेप ले लेते हैं. वो ये कहते हैं मैं ऐसी इंडस्ट्री में जाऊँगा जिसके बारे में लोगों को कम पता है तो उस इंडस्ट्री के बारे में उनको एजुकेट भी करना पड़ता है. उनको चेंज लाना पड़ता है. दे हैव टू गेट अ रेनेसॉन्स.
कि हम वो चेंज कैसे लाएंगे, लोगों को अवेयर बना के, लोगों को एजुकेट करके। अब मेरा मतलब एजुकेशन से ये नहीं है कि आप लेक्चर्स लेने लग जाओ, ये सब चीज़ें करो, बिकॉज दैट्स वेरी हार्ड। बट जब आप 50 लोगों के लिए एक वर्कशॉप लेते हो तो द वर्ड स्प्रेड्स आउट इफ इट इज़ अ फन वर्कशॉप, if it is a social event, the word spreads out and then people get FOMO, and then because of FOMO people want to learn more, or even if they don't understand they will still try it out, right? And renaissance does mean rebirth is not renaissance, it's more of revolution. Rebirth is a little more Greek side. रेवोल्यूशन का मतलब वही, मतलब रेवोल्यूशन लाना मतलब कि आपने एक पूरा थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इतना इसको वैसे मत सोचो कि यार कॉफ़ी, जैसे फॉर एग्जांपल कल को आप इंडिया के अंदर स्लाइस बेस्ड पिज्जाज ले आओ, इट्स अ स्मॉल रेनेसॉन्स, रेनेसॉन्स कैन बी स्मॉल ऑल्सो, कि आपने पिज्जाज खा रहे हैं लोग, आपने स्लाइस पिज्जा स्टार्ट कर दिया, जैसे न्यूयॉर्क स्लाइसेस में करा, न्यूयॉर्क स्लाइसेस करके एक चेन है, उन्होंने अभी स्टार्ट किया है। सो फर्स्ट मूवर्स एक्चुअली गेट रेनेसॉन्स राइट, रन इट। Now the thing is that you have to be the leader of the art. So आपको उस टॉपिक के लिए जाना चाहिए, and just because you sell that product does not mean you will be known for that. Just get it very clear. You have to do things other than just selling that product and doing well in selling that product. You have to do events around it, fun events, workshops. You have to sort of be known for the topic, right? So ये चीज़ याद रखिएगा, हर चीज़ के लिए अलग solutions होते हैं। Like अगर बिरयानी के लिए कर रहा हूँ, सो इट्स नॉट ऑलवेज बिरयानी मेकिंग वर्कशॉप दैट कैन गेट मी फेमस, बिरयानी ईटिंग चैलेंज कैन ऑल्सो गेट मी फेमस। अगर हैदराबादी बिरयानी का कॉन्सेप्ट ये है कि उसको आप विद इन 10 मिनट्स नहीं खत्म कर सकते या 5 मिनट्स नहीं खत्म कर सकते, इसलिए ब्रांड स्टार्टेड चैलेंजेस, यू नो। एंड यू आर सेइंग शिकागो स्टार्टेड मॉन्स्टर स्लाइसेस, yes, and there is another brand called Insta Pizza in Delhi that started monster pizzas, तो deep dish pizzas, not monster pizzas, deep dish pizzas, वो बहुत fat pizzas होते हैं। So see, brands are doing endless things these days. Tier 1 city में possibility of newer experiments is very good, जो बिल्कुल ही इंडिया में नहीं ट्राई हुए, you can try in tier 1 cities of India, but tier 2 और 3 के अंदर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना आई वुडंट सजेस्ट जब तक मार्केट एनालिसिस ना करो आप। एंड टियर 3 के अंदर तो बिल्कुल ही, टियर 3 के अंदर क्या होता है, आप टियर 3 जैसे छोटी सिटीज़ की बात करूँ, मैं राजस्थान से हूँ, सो राजस्थान में अगर हम बात करें ब्यावर, किशनगढ़, गंगानगर, ये सब टियर 3 सिटीज़ हैं। टियर 2 में कहीं ना कहीं अजमेर, बीकानेर, जोधपुर आ जाता है। सो टियर 3 के अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि टियर 3 के अंदर आपको इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं। सो हाँ, मैंने गंगानगर ही बोला, एक्चुअली मैं भी गंगानगर से हूँ, whoever is representing Chicago Pizza. Now टियर 3 के अंदर इट्स बेटर टू ऑर्गेनाइज थिंग्स। ऑर्गेनाइज थिंग्स का क्या मतलब होता है, चाइनीज़ फूड स्ट्रीट पे बिक रहा है, आप उसको हाइजीन लेवल बढ़ा के ऑर्गेनाइज मेथडोलॉजी से, अच्छी ब्रांडिंग से वहाँ पे स्टार्ट कर दो इन अ स्टोर लेवल मॉडल, तो दैट इज़ बेटर इन अ टियर 3 सिटी रादर देन गेटिंग अ न्यू थिंग। क्योंकि उसके अंदर अगर आप एक इंडस्ट्री को हाइजीन बेस पे भी ऑर्गेनाइज कर दोगे ना, तो भी बहुत आपको अच्छा मार्केट मिल जाता है। तो टियर 3 में रादर देन ट्राइंग टू चेंज द हैबिट्स, you can focus on organizing the street level brands or the, so rather than doing experiments, organize things more. So you're saying Shabinaz in Indore. Okay, I'm a tea taster by profession, only cafe that is run by a tea taster. See, Rakesh, so I really like the concept, but at the same time, I love the fact that aapki cafe is based around teas alone. But rather than saying it that it's run by a tea taster, you have to see what the customer side thing is. अभी तो आपका backend है run by a tea taster, right? And I know कि आप water based teas करते होंगे 100% because you're a tea taster. Honestly, I am a big fan of teas. All that being said, आपको customer orientation देखना पड़ेगा. How will you express yourself better in terms of teas? So you can niche down into basically authentic teas or basically water based teas को आप कैसे present कर सकते हो, क्योंकि water based tea के भी there is a decent amount of population, 2 to 3% population तो है जो आज भी green teas, white teas, blue matcha teas and बहुत सारी चीज़ों के आगे famous है. You can even do matcha teas for example. तो आपको branding concept एंड यूजर के हिसाब से देखना होगा. सो व्हेन यू अगर आप ब्रांडिंग में ये बोल रहे हो कि इट्स रन बाय अ टी टेस्टर, आई वुडंट से दैट्स द बेस्ट ब्रांडिंग. जब कोई लैंड हो जाए आपके यहाँ, फुटफॉल डेवलप हो, वहाँ पे आप बोलो तो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यूर टी इट्स रन बाय अ टी टेस्टर. बट ओवरऑल आई विश यू ऑल द बेस्ट बिकॉज इट्स अ वेरी गुड मॉडल. राइट नाउ देयर आर वेरी फ्यू ब्रांड्स serving more than green tea or chamomile tea, so go ahead with it, why not? And tier 1 cities you will do better. Personally I feel that tier 1 cities में जैसे सैलड ड्रिवन मॉडल्स आ रहे हैं आजकल,
वो कहते हैं रेस्टोरेंट्स में क्यों सैलड करते हो, वी आर अ सैलड ड्रिवन मॉडल, विल गिव यू लाइक 20 टाइप्स ऑफ सैलड. नाउ यू विल से कि सबवे कर रहा है, बट सबवे इज नॉट नोन फॉर सैलड. सबवे डज नॉट एक्सेल इन सैलड. सबवे का प्राइमरी प्रोडक्ट सैलड नहीं है. कोई सैलड याद आता है तो अभी शायद सबवे बोलते हैं, बट यू स्टिल हैव दैट मार्केट रेडी टियर 1 में सैलड्स एंड टीज. या सो लीडर ऑफ द आर्ट वाली बात हो गई. और हाउ टू क्रिएट अ नीश इन टियर 2 टियर 3 सिटीज का भी यही है कि आप फॉर्मलाइज करो उस इंडस्ट्री को रादर देन हॉरिजॉन्टल मेन्यू. ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर टियर 3 सिटीज में मोमोज मिल रहे हैं तो अभी 2 टाइप के या 3 टाइप के मोमोज मिल जाते हैं ऑन द ग्राउंड. आप ये बोलो मैं 10 टाइप के मोमोज ला रहा हूँ एंड ऑर्गेनाइज कर दो उसको. जहाँ पे अनहाइजीनिक है या यूनिफॉर्म्स नहीं पहनी हुई तो उसको ऑर्गेनाइज कर दो टियर 3 सिटीज में. टियर 2 में फिर भी आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. टियर 3 में प्योरली यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन वेराइटी because people like to have more options but they don't want to leave their base, right? So tier 3 cities mein, that's what could be the best marketing strategy for a city like Sri Ganganagar, that for a brand like Chicago Pizza. I will connect with you because Sri Ganganagar is where I come from. We'll connect properly on this because I will not jump into one brand altogether abhi for now. सो अब नीश डाउन की बात करते हैं क्योंकि ठेका कॉफ़ी किसी ने सुना नहीं था तो मैं ठेका कॉफ़ी की ही बात कर लेता हूँ. इट्स रीच्ड अ वैल्यूएशन ऑफ 100 crores प्लस इन अ मैटर ऑफ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड. ऑल्दो कोविड आया द ब्रांड वेंट डाउन. आई थिंक 8 लाख की सेल थी पूरी ईयर की विच इज़ वेरी लेस. बट स्टिल वाई डिड इट स्टार्ट टू गेट नोन. स्टारबक्स आ गया है, क्रेजी कॉफ़ी है, नथिंग बिफोर कॉफ़ी है, इतने सारे कॉफ़ी ब्रांड्स आ गए. उसके बाद ठेका कॉफ़ी ने एक्सपैंड करना चालू किया. बट वाई कुड इट एक्सपैंड एंड वाई कुड इट क्रिएट दैट वैल्यूएशन. क्यों? क्योंकि उसने और फर्दर नीच डाउन किया. उसने बोला कि यार आई विल सर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफीज एंड मेरा टर्न अराउंड टाइम इज 0. लाइक मैं लेस देन अ मिनट मैंने यहाँ लिख दिया बट इट्स एक्चुअली 0. दे जैसे आपको आइसक्रीम के उनका मॉडल क्या है, दे आर सर्विंग इट ऑन रिक्शाज काइंड ऑफ अ मॉडल. रिक्शा नहीं होता, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुली मेड रिक्शा एंड इट्स जैसे आपको आइसक्रीम वेंडर्स होते हैं ना रिक्शा वो साइकिल पे, वैसे ही उनका एक बहुत ब्यूटीफुली डेवलप्ड रिक्शा साइकिल है जिसमें स्टोरेज होता है. तो जैसे आपको आइसक्रीम वेंडर्स आइसक्रीम देते हैं वैसे ही रिक्शा में इट गिव्स यू कॉफ़ी. प्लस दे हैव एडेड सम इंडियन फ्यूजन्स टू द कॉफ़ी. तो उसमें क्या है, व्हाट दे हैव डन इज दे हैव सॉर्ट ऑफ मास्टर्ड दैट इंडियन स्टाइल कॉफ़ी, ठेका कॉफ़ी. इसलिए उन्होंने नाम भी वही रखा ठेका कॉफ़ी कि मतलब कॉफ़ी का ठेका है. सो ठेका इन द सेंस कि उनने नए मतलब जो इंडियन फ्लेवर्स होते हैं या जो लोगों को पसंद है वो फ्लेवर्स उन्होंने इंटीग्रेट कर दिए, रोज एंड ऑल कपल ऑफ अदर फ्लेवर्स. एंड टर्न अराउंड टाइम इज सम वेरी वेरी बिग थिंग. उस पर कभी और एक्सपैंड करेंगे बट टर्न अराउंड टाइम इज इंपॉर्टेंट इन ऑल दी रेस्टोरेंट्स एंड दैट ओनली हैपेंस विद SOPs. आप कितना भी कर लो टर्न अराउंड टाइम बिना SOPs के नहीं कंट्रोल होता. अब आपने ये सब कर लिया, यू डिड एवरीथिंग दैट आई टोल्ड यू टू. हाउ डू यू स्केल अप योर ब्रांड? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नीश प्रोडक्ट बना लिया है. आपको नीश प्रोडक्ट SOPs के साथ ही डिलीवर करना है. SOPs मतलब होता है कि विल इफ यू आर नॉट देयर एट द स्टोर विल द स्टोर रन वेल. if some of the staff of your store gets changed, मान लीजिए 1 हफ्ते का ट्रेनिंग टाइम भी दे दिया, विल द स्टोर वर्क एग्जैक्टली द सेम लाइक इट यूज्ड टू. And that is where McD का example comes in place. McD is the world's biggest and most automated brand ever. अगर आज McD से कोई चले जाता है छोड़ के, although उनकी पॉलिसीज इतना स्ट्रिक्ट है नहीं छोड़ पाता है, बट स्टिल अगर कोई छोड़ के चले भी जाता है ड्यू टू वॉट एवर रीजन, within 2 days or 3 days turnaround time McD replaces it, gives another guy, even if you find another guy. but McD के SOPs इतने स्ट्रॉन्ग है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि 2 से 3 दिन में आप ट्रेन हो जाते टू गेट ऑन द ग्राउंड. तो will the brand run the same if humans get interchanged? If yes, then your SOPs are in place. SOPs के लिए we'll have a bigger module next time. SOPs का मतलब होता है standard operating procedures, processes, procedures. People use it interchangeably. Standard भी कहते हैं लोग, standardized भी कहते हैं. Both are fine. So एंड ये 2 चीज़ें हैं. तो स्केलेबिलिटी में एक SOPs का मॉड्यूल बहुत ज़रूरी होता है और एक टैट का मॉड्यूल बहुत ज़रूरी होता है. टर्न अराउंड टाइम, सी आज के टाइम पे टुडेज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड सॉरी फेसबुक कम है बट इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एंड वर्ल्ड वाइड तो इवन टिकटॉक इज डूइंग वेल एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डूइंग रियली वेल एंड इवन यूट्यूब इज डूइंग बेटर देन इट यूज टू 1 साल पहले से, 1-2 साल पहले से, बिकॉज शॉर्ट्स आ गए हैं. लोगों का टाइम स्पैन, अटेंशन टाइम स्पैन, पेशेंस कम होते जा रही है एंड यू कांट डू एनीथिंग ऑफ इट. एंड ऑल यू कैन डू इज अपने मॉडल को टर्न अराउंड टाइम लो कर दो प्रोडक्ट को डिलीवर होने से. ऑर्डर टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द टाइम आई प्लेस दी ऑर्डर
एंड आई प्लेस द ऑर्डर एंड द टाइम आई गॉट द ऑर्डर। इसको आप जितना मिनिमाइज कर सकते हैं, कीपिंग द प्रोडक्ट सैनिटी इन प्लेस, सैनिटी मतलब प्रोडक्ट की एसेंस को इन प्लेस रखते हुए, उतना आपका बेसिकली रीऑर्डरिंग रेशियो बेटर रहेगा, आपका टर्न अराउंड टाइम बेटर रहेगा, आपकी कस्टमर लॉयल्टी बेटर रहेगी। बिकॉज कस्टमर का कन्वीनियंस कॉस्ट थॉट प्रोसेस आता है, यार मैं वहाँ जाऊँगा, रुकना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। if you are the fastest serving brand, lot of brands were giving chicken, KFC came and said मैं बताता हूँ chicken, I'll give like ready to serve chicken, and then it was a hit. Lot of brands were giving burger, and then McD came and said I'm going to be the fastest guy to give burgers, you know, and very consistent burgers. Consistency is also a big very important point, but low tat, SOPs and consistency, इन तीनों चीज़ों पे जब आप play कर लेते हैं तो then your model becomes scalable, कि उसको आप scale कर सकते हैं, you know. And also just to you should be your own customer, a very demanding one. I'm sure we all have had that customer जो आके random चीज़ों पे गलतियाँ निकाल रहा है, you know, random चीज़ों पे, but sometimes we feel it is random. See your Google reviews, stay on the store sometimes, be your own customer, you will, and be that demanding customer who takes out issues. जो भी issues आपको major primary लगते हैं उनके लिए SOPs build up कर लो, you know. You wouldn't believe how much stress Starbucks अपनी branding को देता है. The other day I was in Starbucks, उनके washroom के अंदर का जो वो जो paper होता है, not the toilet paper, जो hand cleaning towel papers होते हैं, वो भी green color के हैं. That's the level of attention they give. CCD के अंदर whoever's gone to CCD, washroom के पीछे उनके modules लगे होते थे ना, tick check mark modules. So that is the level of SOPs that they used to have. तो कोई अगर process है, अगर कोई भी प्रोसेस होना है तो इट विल नॉट हैपन वर्बली. इफ इट्स रिटन डाउन इट कैन गेट ऑटोमेटेड, इफ इट्स नॉट रिटन डाउन इट कैन नेवर गेट ऑटोमेटेड. थोड़ी बहुत प्रिंसिपल्स फॉलो करके SOPs, टर्न अराउंड टाइम एंड कंसिस्टेंसी पे आप फोकस कर सकते हो. ऑल्सो ये एक्चुअली बहुत हाईलाइटेड पॉइंट था, एक पूरी स्लाइड थी, इसमें बस एक पार्ट आ गया है. फोकस ऑन डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्शन होता है दैट अगर आप आज ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो एंड आपको अपने कस्टमर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो then there is no point of starting the brand. You have to get intelligent with your customer. और अब मैं marketing side of things आ रहा हूँ. अभी तक मैं branding and business modeling पे बात कर रहा था, अब मैं marketing side of things आ रहा हूँ. So whoever is like, you know, sleeping or just like not sleeping really, but whoever is a little tired, just take out a little minute, सब छोड़ दो एक बार के लिए. Just okay, so clap 3 times, put on your mics on unmute and clap 3 times with me. ये हो गए सारे. I want everybody to unmute in 3 times. बहुत जोर से, थोड़ा सा जोर से. Yes. 3 times. Brilliant. Perfect. 1, 2, 3. Okay, whoever's that, thank you for morning. Thank you. Perfect. So back to mute again. ये मैं marketing enter कर रहा हूँ. So इस बात ध्यान रखना, this is more important for existing restaurants than the whole previous module, because existing restaurant owners might be able to change few things in their business model and branding might not be. But यहाँ से आपका marketing module start होता है and you can do everything 100% from here on, even with your existing restaurant, right? So focus on data collection. डेटा कलेक्शन क्या होता है कि आपको अपने कस्टमर्स की बिलिंग हैबिट्स, उनकी चॉइसेस, उनकी क्यूजीन चॉइसेस, आपको उनकी प्राइसिंग फ्रीक्वेंसी, कितनी कब आते हैं, प्राइसिंग कितना स्पेंड करते हैं, कितना नहीं करते, कौन हाई पेयर है, कौन लो पेयर है, कौन मिड पेयर है, ये सब समझ आना चाहिए, राइट? सो हाउ डू यू रियली मार्केट द ब्रांड एंड हाउ डू यू अक्वायर न्यू कस्टमर्स? ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट रिमेंबर दैट दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करो. अभी मुझे याद है चैट में 2-3 बार पूछा गया था, हाउ टू मेक श्योर कि कस्टमर बोर ना हो. यार अगर आप एक इंडस्ट्री के लिए जाना चाहते हो, अगर आप अवन पिज्जाज के लिए जाना चाहते हो, तो मेक आउट न्यू पिज्जाज. नए पिज्जाज निकालो. पिज्जा हट इंडियनाइज भी कर रहा है और नए पिज्जाज भी निकाल रहा है. ऑफ कोर्स पिज्जा हट इज नॉट डूइंग वेल इन इंडिया, बट स्टिल दैट इज बिकॉज ऑफ अदर रीजंस. बट पिज्जा हट इज स्टिल ट्राइंग टू अक्वायर न्यू क्लाइंट्स विद न्यूअर प्रोडक्ट्स. सो इट्स Domino's, so is everybody. Why are you not doing so? It hardly takes a chef and some YouTube videos to start a new product. Why are you not doing it, you know? So if you're not, that is probably because you have too many cuisines going on. If you have too many cuisines, एक प्रोडक्ट को या एक क्यूजीन को या एक कॉन्सेप्ट को अपने आप को हाईलाइट करने लग जाओ और कल से सारी मार्केटिंग, सारी ब्रांडिंग, सारा सोशल मीडिया, सारी पैकेजिंग वर्क, सब कुछ, इंटीरियर्स की भी थोड़ी चीज़ें अगर खराब हो रही हैं तो चेंज करने का टाइम आ रहा है, तो उनको उस हिसाब से चेंज कर लो. उस प्रोडक्ट ड्रिवन, उस कॉन्सेप्ट ड्रिवन या उस लाइक ओवरऑल लाइक बेसिकली उस नीश ड्रिवन.
नए प्रोडक्ट्स आप हर महीने लॉन्च करो या हर क्वार्टर लॉन्च करो, महीना इज बेटर बिकॉज बट इफ यू फील आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज इज अ लॉट, देन टेक अ क्वार्टर, स्टार्ट विद अ क्वार्टर बट मूव टू एवरी मंथ. आई कैन टेल यू ब्रांड्स हु डू इट एवरी 15 days, बट आपको 15 days नहीं करना बिकॉज वो मंथली प्रोसेस में आपको बताऊंगा कैसे. इफ यू कैन मास्टर दैट देन डूइंग 15 days इज ऑल्सो नॉट बैड. एंड अभी आपको लग रहा होगा मैं ये सब कर तो लूंगा, पर मैं अट्रैक्ट कैसे करूंगा क्लाइंट्स, वो भी मैं बताऊंगा. बीटीएल इवेंट्स क्या होता है? बिलो द लाइन. बीटीएल कितने लोगों को पता है यहाँ पे? जैसे यस और नो, बीटीएल क्या होता है? यस, ओके, ओके. नो, राहुल says no. Nikhil Joshi says how I can brand my restaurant, guide us. So Nikhil, Rahul from Papi's Kitchen, you can connect with me post this call. We'll discuss about that in depth. I'll give you a number of one of my teammates who takes care of the branding side of things. He'll basically assist you with the whole concept, give you a couple of forms. So ठीक है, for people who don't understand BTL, and I'm very surprised that Pranay Kothari here doesn't, because I was expecting him to. So Pranay, little disappointed. All that being said, BTL मतलब below the line. Above the line और below the line क्या होता है? Basically above the line मतलब न्यूज़पेपर में ऐड देना. मैं उसका मतलब बताता हूँ. न्यूज़पेपर में ऐड देना मतलब मुझे ये नहीं पता कि मेरा ऐड कौन देख रहा है. आई जस्ट नो कि सब देख रहे हैं. मतलब जो भी वो न्यूज़पेपर खोल के देख रहे हैं, हो सकता है मुझे तो पता हो कि चलो इकोनॉमिक टाइम्स है तो थोड़ी एजुकेटेड ऑडियंस होगी, बट आई रियली डोंट नो अगर मेरा टारगेट ऑडियंस देख रहा है कि नहीं. अगर मेरी एक्टिविटीज़ मेरी टारगेट ऑडियंस देख रही है और वो मेरी एक्टिविटीज़ मेरी टारगेट ऑडियंस को इम्पैक्ट कर रही है, सो वो एक्टिविटीज़ बिलो द लाइन है. अगर मेरी एक्टिविटीज़ सबको जा रही हैं, मुझे नहीं पता कि ये जैसे सोशल मीडिया पोस्ट होती है, यू डोंट नो हु इज इट गोइंग टू, यू जस्ट पुट इट आउट देयर इन द मार्केट. तो दैट इज कॉल्ड ATL, अबव द लाइन. हमें नहीं पता इट इज गोइंग टू एवरीवन और इट इज गोइंग टू समवन लाइक हु आई एम नॉट कंट्रोलिंग. BTL मतलब इट इज स्पेसिफिकली, अगर मेरा चाइनीज आउटलेट है तो इट इज स्पेसिफिकली टू पीपल हु लव चाइनीज. एनी इवेंट दैट यू डू विच इज स्पेसिफिकली फॉर चाइनीज लवर्स and you are inviting Chinese lovers, it's called BTL events. तो BTL is a कीवर्ड जो यूज हो जाता है, होता है मार्केटिंग के अंदर, ब्रांडिंग के अंदर भी और इवेंट्स के अंदर भी. तो इवेंट्स जो आप कर रहे हो, डोंट डू जनरल इवेंट्स. लाइक मतलब अगर आप अब आपका एक नॉनवेज बुफे है, सो यू विल नॉट डू, सो फॉरगेट अबाउट अ नॉनवेज बुफे. इफ यू हैव अ चाइनीज रेस्टोरेंट, आप कोई इटालियन फूड ड्रिवन नहीं कर सकते कुछ भी इवेंट. आप अपने इवेंट के अंदर पास्ता ड्रिवन इवेंट कर रहे हो, दैट्स नॉट राइट. BTL इवेंट होगा जहाँ पे आप चाइनीज के अंदर आप ये बोल रहे हो मैंड्रिन क्यूजीन, तो मैंड्रिन क्यूजीन फूड फेस्टिवल, दैट्स अ BTL इवेंट. दैट्स रेलेवेंट टू माई इंडस्ट्री, दैट्स रेलेवेंट टू माई चाइनीज फूड लवर्स, एंड इट शुड बी रेलेवेंट मेजरली टू योर टारगेट ग्रुप. ठीक है. So BTL events, experiences. Now experiences का मतलब होता है that you have these. I'll give you an example. So this restaurant I went to is a friend of mine who consulted it in the food side of things. The concept that he had put across for increasing the experience value was that the food, that dish was called mushrooms के कुछ salad mushrooms or something, salad mushrooms. Now 8 to 10 mushrooms, वो लोग एक ट्रे के अंदर लाइक पैन, छोटा सा पैन होता है जो ईटेबल पैन होता है ना, पैन क्रॉकरी कहते हैं जिसको, उसमें लाते थे. उसके ऊपर ग्रेवी एंड बटर पॉप करते थे और हल्की सी फायर ऑन द टेबल ऑफ द कस्टमर करते थे. तो दैट्स कॉल्ड एन एक्सपीरियंस. सो गिव पीपल इंस्टाग्रामेबल थिंग्स. आप चाहते हो कि हम आपकी मार्केटिंग हो, तो यू हैव टू गिव पीपल समथिंग दैट दे कैन पुट ऑन देयर इंस्टाग्राम. राइट. एंड समथिंग फैंसी ऑलवेज वर्क्स. चाहे आपका छोटे से छोटा QSR रेस्टोरेंट हो, फैंसी करना ऑलवेज वर्क्स. यू कैन ऑलवेज हैव वन पर्सन असाइन टू फैंसी ऑल्सो, दैट कैन बी अ मार्केटर और अ शेफ और समथिंग लाइक दैट. एंड ऐसा नहीं कि हर डिश में करना है, एक दो डिशेज में भी कर लो. दैट लिटिल एक्सपीरियंस कि आपने ग्राउंड पे आके, वहाँ टेबल पे आके किसी ने कुछ कर दिया, या जब वो बन रहा है तो टॉस होते हुए आप देख सकते हो. लाइव किचन में जब भी आपने कुछ एक स्पेसिफिक डिश का ऑर्डर दिया तो आपको लेके जाएंगे लाइव किचन पे, दे विल शो यू दैट. समथिंग लाइक दिस, दीज आर कॉल्ड एक्सपीरियंसेस. तो ये माइक्रो एक्सपीरियंसेस आपको ऐड करने पड़ेंगे टू बी एबल टू रीच आउट टू मोर कस्टमर्स, ताकि वो इंस्टाग्राम पे शेयरेबल हों. फूड फेस्टिवल मैंने अभी आपको बताया, जैसे BTL इवेंट्स का, फूड फेस्टिवल्स इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ BTL इवेंट, बट फूड फेस्टिवल इज अ ह्यूज डोमेन इन इटसेल्फ. सो डू डिफरेंट फूड फेस्टिवल्स. और मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कैसे इसको एक्सपैंड करना है, लाइक कैसे लोगों के पास पहुंचना है. ऐसा नहीं कि बस बना दिया और लोग नहीं आ रहे.
Engaging challenges. So engaging challenges होते हैं बिरयानी. If you finish it under 2 minutes, you get it for free. Engaging है. So it's a culture. आप ये भी कर सकते हो कि people who have finished this बिरयानी कोई पैसे ऐसे नहीं देने या free नहीं करनी चीज़ें, but उनकी picture ली और Polaroid camera से just put it in the hall of sort of fame, right? तो उससे क्या होता है कि at least customer gets engaged. So you have to engage the customer in a fun manner. ठीक है. और सोशल ग्रेटिफिकेशन भी होती है कि किसी को आपने हॉल ऑफ फेम में डाल दिया या इंस्टाग्राम पे डाल दिया हॉल ऑफ फेम में कि दिस पर्सन वाज एबल टू फिनिश. एक सोशल ग्रेटिफिकेशन होती है, एक सॉर्ट ऑफ एक अवार्ड मिल जाता है. तो अवार्डिंग कस्टमर्स इज ऑल्सो अ गुड एंगेजिंग एस्पेक्ट. Last thing is, it's just a type of event, but it's called focusing on lost instrument. A lot of people ask me, hey, how about we do live music and all of that? So I tell people, why will people come to your live music? Yeah, what is the reason, right? आप live music में you can focus on instruments that have been lost in the thin air and people don't know about it. उस बहाने आ सकते हैं. These are called customer acquisition events. तो lost instruments मतलब didgeridoos, मोरचंग, बहुत सारे इंडिया में instruments हैं. India has the maximum instruments in the world. And then lost art form. So I remember the other day there was a Mandana workshop, like a sip and paint, water paint Mandana workshop at Hilton, where you can sip wine and you kind of do Mandana, and somebody teaches you how to do Mandana with watercolors, right? So you can focus on lost art forms also. So create such good engaging events, because that is where you give. And if you have a chain of restaurants, or just do it pan India, you know, just like one event calendar. ये भी मैं आपको बताऊंगा how to execute this better. Now, what are BTL events? मैंने शायद आपको बता ही दिया कि टारगेट ग्रुप के पे जो टारगेटेड होते हैं वो बिलो द लाइन होते हैं. जो टारगेट ग्रुप, जैसे ये देखो, अगर मैं इन सबको करूंगा ना, यहाँ पे ये इतने सारे लोग हैं, मैं इन सबको करूंगा तो ATL हो गया. बट ये मेरा टारगेट ग्रुप है, मैंने इन पे ही किया तो ये BTL हो गया, बिलो द लाइन. लाइन के नीचे आपका टारगेट ग्रुप है, लाइन के ऊपर सब है, इंक्लूडिंग योर टारगेट ग्रुप. सो a lot of times people tell me कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ दे देते हैं, न्यूज़पेपर में पैम्फलेट्स डाल देते हैं. तो आई ऑलवेज आस्क देम कि यार आपका टारगेट ग्रुप क्या है. तो वो बोलते हैं यार बहुत अच्छी सोसाइटी ज़्यादा टारगेट ग्रुप. नहीं, दैट इज़ नॉट हाउ यू डिफाइन टारगेट ग्रुप. टारगेट ग्रुप हैज़ टू बी प्रोडक्ट ओरिएंटेड. कि द फैक्ट दैट दे लव दिस इज देयर, लाइक यू नो, दे आर फ्रॉम सो एंड सो इनकम ग्रुप, दे लव सो एंड सो क्यूजीन, दे एक्चुअली ईट इट वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक. तो ऐसे टारगेट ग्रुप आपको डिफाइन करना है, रादर देन कि पॉश सोसाइटीज हमारा टारगेट ग्रुप है. यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल एंड अप डूइंग इट दैट वे. नाउ व्हेन यू आर डूइंग दिस इवेंट, ऑल्सो स्टार्ट क्यूरेटिंग गेस्ट लिस्ट. मतलब ये ओवर द पीरियड, आज नहीं. गेस्ट लिस्ट मतलब होता है दैट यू हैव अ डेटा ऑफ पीपल हु यू नो, लाइक इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू. आपको पता है कि आपकी टारगेट ग्रुप जो है ना, फॉर एग्जाम्पल आई नो, आप यू नो दैट फॉर एग्जाम्पल बिरयानी इज ईटन बाय मोर बाय कॉलेज स्टूडेंट्स. सो यू विल ट्राई टू रीच आउट टू कॉलेज स्टूडेंट्स. एंड आप क्या करोगे, एक BTL इवेंट कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए करा दोगे. अगर आपको पता है डन बाय वर्किंग मैन, सो यू विल टाई अप विद ऑर्गेनाइजेशंस लाइक BNI, YIN, CII, EO, व्हाट नॉट. तो आप उनके लिए इवेंट करा दोगे. सो गेट वे योर टारगेट ऑडियंस इज, राइट. एंड उनके इंस्टाग्राम पे भी आओ, उनके फेसबुक पे भी आओ. तो दैट ऑल्सो वर्क्स. सो व्हेन यू डूइंग एन इवेंट, मेक इट फन, इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स कमिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. ये गेस्ट लिस्ट आप मीडिएटर्स के थ्रू कर सकते हो. इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं मीडिएटर्स, हेड ऑफ एसोसिएशंस हो सकते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, मल्टीपल पीपल हो सकते हैं, एंड दे आर मोर देन ईजी टू रीच आउट. सो यू कैन क्यूरेट द इवेंट. बट मैं यहाँ एक चीज़ आज नहीं करी, बट मे बी डाउन द लाइन आई विल आस्क रीमा टू सेंड दैट टू यू. एक टारगेट ग्रुप की शीट होती है जिसमें 4 से 5 पॉइंटर्स भरने होते हैं, और वो शीट आपको, यू हैव टू कीप वेरी क्लोज टू योर सेल्फ. Like it's also there was a marketing phrase that you have to literally sleep with the sheet of the target group. इतना important होता है वो target group का knowledge कि ये मेरा target group है. Right now, how do you ensure regular footfall? आपने ये सब activities तो कर दी. You have given them a reason. Discounting and offers की जगह भी आपको थोड़ा कुछ करना चाहिए. I did not write discounting and offers here. Reason is कि discounting and offers तभी काम करते हैं जब वो थोड़ा engaging हो. तो इस पर मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी बताऊंगा. न्यू प्रोडक्ट एड-ऑन्स जो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, वो बेटर रहेगा. अगर आप एक नॉर्मल एग्ली ओलियो पास्ता इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वोंट हेल्प. अगर वो Tier 3 सिटी में, मे बी देन, बट नॉट अदरवाइज इन BTL इवेंट्स. एंड ऑल्सो अब आप ये कम्युनिकेट कैसे करोगे अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को. आपकी टारगेट ग्रुप हुई एक तो नए क्लाइंट्स और एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट. You will do it all via Relo, like you can do it all via Relo, you can do it via WhatsApp, but WhatsApp से personally भेजना is not very professional. Although it is personal, but still आप हर audience को इतना accessible नहीं बना सकते, owner को या किसी एक part of the. So what you do it is you do it via this thing, Relo, via CRM softwares like Relo, where you can mail them, SMS them, and email them on a very personalized manner.
where their name is also there and everything is there. So the thing is that उस पे आप अपना data upload करो, be it college audience. You can even upload manual data and you can even integrate your point of sale software, Paid Puja or whatever software you use, Tarkus. So उन सॉफ्टवेयर्स को आप पेड पूजा में इंटीग्रेट रीलो में इंटीग्रेट कर दोगे तो आप वो कम्युनिकेट कर पाओगे, और उसको कहते हैं BTL कम्युनिकेशन. सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने को एक ज़माने में BTL कहते थे, बट अब ATL हो चुका है. वो आप पोस्ट डाल रहे हो, आपको ये भी नहीं पता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, मेरी ऑडियंस भी देख रही है कि नहीं देख रही है, फ्रेंड्स एंड फैमिली देख रही है, पता चल रहा है. सो ऑल्दो सोशल मीडिया में जब आप एड्स करते हो तो वो BTL हो जाता है, क्योंकि आप एड्स में डिफाइन कर देते हो टारगेट ऑडियंस. ईमेल मार्केटिंग इज वेरी रिस्पॉन्सिव इन इंडिया, very responsive. I will also show you this, Anish. I've worked with Chokirani Group. Email marketing works wonders for hospitality brands, so wonders. F&B में भी अच्छा करता है, but yes, F&B में ratio is not as strong as hospitality, but it's always good to try out, you know. Still has been working for a lot of brands in F&B also. And remember the shoe वाली story कि अगर कोई नहीं कर रहा है तो बेटर टू डू दैट एंड ट्राई इट आउट, बिकॉज उसमें ROI सबसे मैक्सिमम होगा. बिकॉज अगर वो चीज़ आप करोगे जो सब कर रहे हैं, देन देर इज ऑल्सो दैट लैग, बिकॉज सभी कर रहे हैं तो इट बिकम्स अ नॉइज. जब एक इंसान कर रहा है तो वो आवाज़ होती है, राइट. सो कम्युनिकेट ऑल द अबव वाया रीलो. नाउ आई गिव यू अ स्मॉल स्टोरी. ये छोड़ दो, मैं दिखाना नहीं चाहता. So this happened during my time in college. So I was in IIM इंदौर specifically. And हुआ क्या कि हमें ना एक बार एक WhatsApp आया. कभी हम में से कोई मोका गया था, मोका in इंदौर, there's a place called Mocha. So we got a message from them. This was back then in 2016, I think. And they texted that, you know, no conditions asked, beer at 2 rupees, only condition that you get 2 rupee coins. And I was like, are these guys, and in my head I was like, are these guys foolish? Like, क्या कर रहे हैं ये लोग? And you know, that time it was all about fun, so I never thought too much logically, and I just went there with a lot of my friends. Of course, at the entry level they had a lot of crowd curation. वो हर किसी को entry नहीं दे रहे थे, because they were curating if the person is sensible enough. They had their own parameters कि you know, the formals are not there or not, and उसके ऊपर वहाँ पे उन्हें लिखा भी हुआ था कि limited entry है. तो they would even say things like reserved and tables, some other things like that. But they gave us entry because we were like decent gentry. When we got entry, we drank like crazy. In college times, everybody understands how MBA colleges are, right? So we drank like crazy. We had a great night. We were like, I think 4 or 6 people. I think we were 4 or 5 people. Yeah, we were 4 or 5 people, maybe 6. We spent there in 2016 or 17, 16 end की बात है. We spent 12,000 rupees on that night, and I was very surprised. कि मतलब 2 rupees की beer थी, and legit 2 rupees की beer थी वहाँ पे. But we spent 12,000 that night because they were not directly making money from beer, but what they were making money from was food, right? Of course, उन्होंने वो event उस दिन के बाद नहीं किया because बहुत ज़्यादा footfall curate करना, मतलब they did different events after that. But that was an engaging offer. When they gave a discount or an offer, they actually, how do I put this? They actually made sure that that person was getting engaged. You have to make the client work a little for the discount and offer. Make it fun for them. ऐसा मत करो कि 25% हर किसी के लिए. Make it sure that, for example, if you come here before so and so time, or just make it थोड़ा playful. Like for example, the last two digit of your last two digit of your credit card, you get as much discount. But put a star on only food, for example. तो ऐसा कुछ you can do it playful. The last two digit of your car is the discount that you will get. So make it playful. If you're giving them discounts and offers, make sure to integrate them in that discount and offer. And ये नहीं कह रहा हूँ हर दिन के लिए चालू कर दो, but for one day in a month is good, right? You know. So this is that story from. I mean, we all were shit drunk, but I still remember, as drunk as I was, I paid 12,000 rupees for that night, and as a college student, that was a bit too much. But we realized that the menu for that day was different. They were making money on the food rather than the drinks. So अंकित, मैं हिंदी में भी mix कर देता हूँ. Sorry about that. We didn't go there for beers. हाँ जी. So that's about it. तो अगर आप कभी भी discounts या offers दो तो थोड़ा सा उसको fun बनाया करो, ऐसे ही मत दिया करो. Now talking about what is Relo, I'm not trying to sell Relo. I'm just trying to tell you how it helped me out. I've been consulting a lot of brands, using it for my clients. I've generated over like 6-7 lakhs of sales in single campaign. Like 5-6 lakhs की sales हमने एक single campaign में भी generate करी है. So I'll show you a couple of these campaigns. Let me get back to my screen.
and show you these campaigns. One second. One second. So I'm going to share my screen. Folder. Yes. See, so these are a couple of them. So just say ये campaign है. One second. Can you see the campaign? Yes or no? Yes, yes, Siddhant, we can see. Yes, you can see it. Perfect. So ये campaign है. So this was a campaign that we try to revive old customers. इसमें क्या है? Whatever you do, you give an offer or you give like a, you give like an event हो रहा है. So you basically make sure that the communication reaches directly to your customers and you can even update. So for example, अगर मेरे पास BNI का data है तो मैं BNI का data इस पे upload कर सकता हूँ and I can send it to them also. So इसमें revenue कैसे tap होता है that you can actually connect it to Paid Puja, the whole point of sale software and then जो revenue उस numbers पे जिन पे मैं भेजूंगा जब वो numbers billing करेंगे आके तो उसका revenue ये tally करते हैं. So जैसे for example ये वाला था इस campaign में we generated 5,13,000 of revenue and we spent like roughly 3,600 rupees. नहीं हाँ इसमें we spent 3,600 rupees for the campaign on WhatsApp 4,839 and SMS. So net cost हमारी 3,800 rupees थी 3,600 rupees sorry and उसमें overall revenue that we generated was 5,13,000 and we had like so we sent it to these many people. Out of these many people like 50% से भी ज़्यादा लोग visited. The visit rate was 54.1% here. And this was all because of the fact that we were doing BTL marketing, we were not doing ATL marketing. BTL का मतलब होता है कि हम अपने clients को भेज रहे थे, हमें पता है हम किसको target कर रहे हैं वो campaign. So instead of spending heavily on Facebook ads, I told my team to actually start on Relo campaigns. I have a 22 people team based out of Jaipur, which does consultancy for like F&B and hospitality clients and brands. And now that team basically runs CRM campaigns. That team also does social media campaigns. But the kind of ROI that we get from CRM campaigns, when done rightly, right, is massive. Iska ROAS, जिसको कहते हैं return on spent, return on investment, was roughly around 130 or 120 times, if I'm not wrong. 3,600 divided by this, it came out to be. Let me do now the calculator. Yeah. So we spent 3,600 bucks. We got 5,13,500 per sale and 3,600 rupees. So we got a ROI of 142 in this. So that is how the whole system goes in BTL marketing. What you have to focus on is getting back to the presentation right now. What you have to focus on is communicating whatever you're doing to your client in a BTL manner. Don't do ATL marketing anymore because ATL marketing is useless. You cannot give me a figure of the ROI of ATL marketing. हो सकता है starting में आपके कोई CRM tools जो आप use कर रहे हैं या WhatsApp आप हो सकता है कम ROI आ रहा हो but you can still tell me कि सिद्धांत ये ROI है. In ATL marketing in social media it's very tough to take out an ATL this thing and ROI in the sense of the kind of the sales that you had for the whole campaign. Now I'll also show you how the RFM matrix works. RFM matrix works in a manner of amount. So Relo is based on RFM matrix. आपको RFM matrix अगर आप सीखना चाहते हो सीख सकते हो. It will just make you more intelligent in the sense of this customer, how your customers are. Let me just show. Let me open one brand's Relo. Just a second. So RFM matrix जो होता है that is based out of the frequency of purchase of frequency of the purchase of the user as well as the amount that they have purchased it in. So let me share this client's Relo and show you what their RFM matrix is like. So this is a new client that we onboarded. So customer insights. Yes. Let me share this on the screen. Yes. See, so okay, wait. इसमें RF matrix का one second. So for example, you can just check here new versus returning customers, and इसमें how many customers are unique, how many are first time customers, and how many customers are loyal or more than one times they've purchased, right?
I'm going to show you another screen, 1 second. Siddhant, you'll find RF and Matrix under customer insights. हाँ जी. So actually this client, the RFA matrix was not on. There's another client जिसका on है, तो मैं उसका दिखा देता हूँ. Yes, here. So if you can see this customer insights, now segmentation. So basically what any CRM tool does is ये RFM analysis होता है जो 9 parts में आपके customers को divide करता है, and उससे 9 parts मतलब spending के हिसाब से कितना spend करते हैं और कितना often आते हैं आपके पास, वो दोनों कंबाइन करके ये अलग सेट्स ऑफ कस्टमर्स निकालते हैं कि ये प्रॉमिसिंग कस्टमर्स हैं आपके 48%, आपके रिटर्निंग न्यू कस्टमर्स हैं 26%. आप इनके ऊपर कैंपेन कर सकते हो नए वालों पे, उनको और ज़्यादा लॉयल बनाने के लिए. प्रॉमिसिंग पे तो करते ही रहो, उनको लॉयल पे ले आओ. ये कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको आपको अटेंशन पे, यू हैव टू गिव देम अटेंशन, क्योंकि ये शायद जा सकते हैं. ये कस्टमर्स आपके टूट चुके हैं, जा चुके हैं, बिकॉज ये नो लॉन्गर दे डोंट विजिट योर स्टोर एनी मोर. ये कस्टमर्स आपके रिस्क पे हैं, और ये सब डेटा एनालिटिक्स आपके पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर से होता है. जो वो परचेज करते हैं, वो क्या परचेज करते हैं, कौन सी कैटेगरीज को ज़्यादा लॉयल है, उनका टेस्ट बड्स क्या है, मतलब कौन से प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो आप सब जान सकते हो. यहाँ पे फिल्टर्स से पता चल जाता है. सो देर आर फिल्टर्स बाय विच यू कैन गेट टू नो कि कौन से कस्टमर्स चिली पनीर फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, तो उन पे चिली पनीर का कैंपेन किया. सी मुझे पास्ता पसंद है और आप मेरे को पिज्ज़ा बेचे जा रहे हो, इट माइट नॉट बी ट्रू कि मैं आ जाऊँ. हो सकता है पास्ता पिज्ज़ा इज ओके, बट पास्ता वाले कस्टमर को आप चिली पनीर नहीं सेल कर सकते. इसलिए आपने सोशल मीडिया पे चिली पनीर मार्केटिंग कर रहे हो, बट मेरे को नहीं पसंद. तो पीपल हु आर ऑर्डरिंग पास्ता, उसके ऊपर आपने पास्ता का ऑफर दिया या पास्ता का कैंपेन रन किया, दैट इज व्हेन यू गेट मोर रिस्पॉन्स, एंड दैट इज इवन बेटर अ फॉर्म ऑफ BTL मार्केटिंग. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. देन सेगमेंटेशन हो गई, एंड सेगमेंटेशन से क्या सेल्स आ रही है वो भी ये पूरा डिफाइन कर देते हैं, राइट. So I'm going to stop sharing the screen because not more, इससे ज़्यादा I can't disclose for the client, and then I'll get back to showing you my black and white presentation. 1 second, ये कहाँ गई, ये रही. So this is how the this thing works. Left graph में होता है pricing, कितना ज़्यादा spend कर रहे हैं, और right graph में होता है कितने often spend कर रहे हैं. Now you basically ये वो campaign का ही एनालिसिस है. आप डिफरेंट कैंपेन्स डिफरेंट कस्टमर्स को भेजते हो, जो मैंने आपको बताया. आप सेम कैंपेन सबको नहीं भेजते जब तक वो आपको लगता है कि हाँ ये कैंपेन इज समथिंग दैट एवरीबडी विल रिस्पॉन्ड टू, ऑल ऑफ माय कस्टमर्स. अब एक और चीज़ है, इन सब की मार्केटिंग के साथ आपने ये सब मार्केटिंग कर लिया, फुटफॉल जनरेट कर रहे हो आप रेगुलरली, बट आपको ये हो रहा है कि जब तक आप फुटफॉल जनरेट कर रहे हो तब तक हो रहा है, बट उसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है. इम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि आपने 1000 लोगों की फुटफॉल जनरेट की, जब तब वो 1000 लोग आ गए, बट उसके अगले दिन फिर नॉर्मल फुटफॉल चालू हो गया. उसके लिए आपको क्या करना है, जिसको कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड मार्केटिंग. ब्रांड रिकॉल कैसे क्रिएट करना है, उसका एक सिंपल प्रिंसिपल है, इसको कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है. व्हाट यू डू हियर इज सुपर पैकेजिंग तो करोगे ही करोगे, बट यू डू पैकेजिंग जो कस्टमर्स रख सकते हैं. इंडियन क्लाइंट को बहुत अच्छा लगता है, जैसे केविंटर्स का बिजनेस मॉडल ही ये था कि आप केविंटर्स की बॉटल व फैंसी, सो यू कुड कीप दोज बॉटल, एंड केविंटर्स उसके ऊपर लिखा हुआ था. सो क्या होता है, व्हेन पीपल वुड यूज देम, या कैरी बैग्स इतने अच्छे होते हैं कि पीपल उनको नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, तो दूसरे लोग देखते हैं. तो जितना ज़्यादा वो दिखेगा उतना ज़्यादा वो बिकेगा, जितना ज़्यादा वो दिखेगा उतना ज़्यादा वो थॉट लीडर बनने के चांसेस हैं, कि कोई भी डाउट हुआ ऊपर आ गया, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, व्हाट्सएप पे हो, ईमेल पे हो, SMS पे हो, ऑफलाइन पैकेजिंग में भी दिख गया. एक कस्टमर को, इट इज़ सेड कि एक एवरेज कस्टमर को आपको अपने स्टोर पे लाने के लिए 3 से 4 जगह दिखना चाहिए, राइट. नाउ डेज थोड़ा कम भी हो गया, क्योंकि नए नए कॉन्सेप्ट्स आने लग गए हैं. नीश कॉन्सेप्ट्स 1-2 बार भी दिखते हैं तो आ जाता है कस्टमर फुटफॉल करने, बट 3 से 4 बार जब कस्टमर को दिखता है कि एवरेज टाइम ब्रांड, तो आपको मेक श्योर करना है कि मैं कैसे 3 से 4 बार अपने कस्टमर को, नॉट एवरीबडी, अपने कस्टमर को दिख जाऊं. सो राइट नाउ, अब ये सब आपको करने के लिए ना मैंने इतना कुछ बता दिया, ये भी ऑल द चीज़ें ये 5-6 ही थी, बट जस्ट टू स्ट्रीमलाइन एवरीथिंग, आफ्टर द कॉल आई विल गिव अ 365 डे कैलेंडर का गूगल शीट. उसकी आप, या एक्सेल शीट दे दूंगा, उसको आप कॉपी करके या तो गूगल शीट पे अपलोड कर सकते हो ताकि सब लोग देख लें, या एक्सेल पे भी यूज़ कर सकते हो. उसके अंदर आप हर जो भी 365 डे में अपने ब्रांड के लिए प्लान करते हो वो डाल सकते हो इन ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स. मैं ये प्रेजेंटेशन भी फ्लोट करा दूंगा, एंड whoever wants to reach out to me, I'll also share a number on which you can send WhatsApp, so then we can discuss accordingly. Matlab, like if you have any doubts, I'm going to give one of my team members number.
एंड 365 डे कैलेंडर आपको बनाना है BTL इवेंट्स का, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का, प्रोडक्ट हाईलाइटिंग का एंड इवेंट्स यू आर गोना टेक पार्ट इन. अभी तक मैंने इवेंट्स की बात की जो आप ऑर्गेनाइज करोगे. देर आर गोइंग टू बी इवेंट्स जो आप पार्ट लोगे दूसरे इवेंट्स में. इफ योर टारगेट ऑडियंस इज मोर कॉलेज स्टूडेंट्स सो यू शुड बी आउट देयर इन द कॉलेज. इफ योर टारगेट ऑडियंस इज बिजनेसमैन देन बिजनेस एग्जीबिशंस में यू शुड बी देयर, हाउ एवर यू कैन गो, राइट. सो आपको वो बेसिक बैकग्राउंड रिसर्च तो देखनी पड़ेगी कि मेरी टारगेट ऑडियंस रिलेटेड क्या इवेंट्स हो रहे हैं, यू नो. एंड ऑफ कोर्स बिजनेस ऑडियंस मतलब सारी बिजनेस ऑडियंस नहीं होती. आई एम श्योर देयर इज अ सेट ऑफ बिजनेस पीपल हु माइट लाइक योर प्रोडक्ट मोर देन अदर्स. तो टारगेट ऑडियंस डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है. एंड या सो इससे क्या होता है, जो ये कैलेंडर आप बनाते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कैलेंडर आप अपनी मार्केटिंग टीम को दो, अपने स्टाफ को दो, ताकि हर चीज़ अलाइंड रहे. तो उनको ये पता होगा कि इस रेस्टोरेंट या कैफ़े या QSR या फाइन डाइन या कैजुअल डाइन के अंदर ये सब होने वाला है इस पूरे साल. एंड दे शुड ऑलवेज बी एक्टिव कि ठीक है महीने में एक बार देख लिया स्टार्टिंग में, तो उनको पता है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा हाईलाइट होगा. बिकॉज इफ एवरीबडी इज इन लूप ओनली देन कैन यू एग्जीक्यूट एन इवेंट और प्रोडक्ट लॉन्च बेटर. अगर आपको ये लग रहा है कि आप मीटिंग्स सी यू हैव टू डिक्रीज द थिंग्स यू से एंड यू हैव टू इंक्रीज द थिंग्स यू राइट, सो दैट वंस यू से देम फिर वो राइटिंग वाली चीज़ उसको फॉलो अप देती रहती है. वही SOPs में काम होता है. एंड द लास्ट टिप इज डोंट गेट ओवरवेल्म्ड. अगर आप एक भी चीज़ अच्छे से कर पाओ जो मैंने आज आपको बताई, आई एम टेलिंग यू इट विल गिव यू हाई ROI. इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम वेर यू इवेंचुअली स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग. Take one step at a time and have fun, and you should really teach your team how to engage with clients in a fun manner कि थोड़ा बहुत fun हो. मैं एक ना रील आपको can I show you that reel? मैं उसका ना लिंक अटैच करना भूल गया. Just give me a second. I sent that reel to a friend of mine. So it's called Have you been to Carol's Diner in London? One Yep, second. you heard that right. The place with terrible one second. mouth-watering burgers. Yes. Here you So this is a brand that is based on burgers. I'll start that reel here. 1 minute. हाँ, 1 second. Zoom share. So guys, while Siddhant is sharing the link, I am sharing a WhatsApp group link in the chat box right now. You can join that link. That's our webinar group of Relo, and I'll share all the things that Siddhant shares with me. The calendar link, the presentation, and the recording link. So it's a reel, so you can check it out here only. Can you see my screen now? The Yeah, reel. Siddhant, we can. Yeah, I will yeah, fly we can. through you. So just see this reel. This is a concept in London. It's not always important कि इसका हमेशा अच्छे सक्सेस मॉडल बिजनेस लाइक F&B बिजनेस मॉडल का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ही सुपीरियर सर्विस हो और बहुत ही सुपीरियर सब कुछ हो. सी इट्स ऑलवेज गुड टू मेक सम, हमें एक एक्सपीरियंस देना. एक्सपीरियंस का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि बहुत ही सब कुछ सुपीरियर हो. इट हैज़ टू बी फन. फन इज बेटर देन सुपीरियर. जस्ट रिमेंबर दिस. सो आई जस्ट प्ले दिस. Here you will get roasted by rude waiters on purpose, and don't worry, you can also respond with witty comebacks. And the food, oh man, you should try their deep fried carrot and spicy carrot cocktail. Overall, it was such a fun experience. Follow for more. Have you been to Carol's Diner in London? Yep, you heard that right. The place where terrible service meets mouth-watering burgers. Here you will get roasted by rude waiters on purpose, and don't. So they have intentionally kept terrible service मतलब जो थोड़ा सा rude waiters हैं, तो they might make fun of you. तो अब उन्हें वो कॉन्सेप्ट ही ये हाईलाइट किया है. सो आई अंडरस्टैंड इंडिया में ये मॉडल बहुत दूर का है. इतना इंडिया में रूड वेटर्स नहीं, इतना लाइक रूड वेटर्स और टीम मेंबर्स नहीं इतना अच्छा रिस्पॉन्ड करते. बट ऑल दैट बीइंग सेड, आई एम जस्ट टेलिंग यू पीपल आर एक्सपेरिमेंटल. यू कैन स्टिल ट्राई डिफरेंट थिंग्स. दिस इज हैपनिंग इन लंडन, सो ठीक है लंडन के हिसाब से. इंडिया में यू कैन टेंड टू लाइक स्टार्ट बेटर थिंग्स, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एवरीबडी. It was wonderful meeting you. There's a number that you can note down, contact number, in case you sort of want to reach out to me or my team for anything. Should I sort of write it down in the chat? Is it? Siddhant, you can speak. I'll write it down in the chat. That's okay. That's okay. I will just Okay. put it down in the chat. Okay. Yeah. 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 And thank you, Siddhant. That was like very, very valuable session. I'm sure everyone, including me, we took a lot from the session. I'm more than happy, and whatever you are, more than happy to help. You can all connect with me on my Instagram. Yeah. I'm also sharing my Instagram ID with Yeah. you.
Guys, I'm also sharing the link to sign up for Relo. So if somebody is new to Relo and they want to sign up, they can sign up via link, or they can share their phone numbers and their name. And I'll make a note of it, and I can get my team to actually give you a demo of the product and how can you do all of those things that Siddhant was talking about. And there's a short poll that I'm launching right now just to see the audience. Okay. Yeah. Okay, guys, for everyone who actually wants a demo of the product or who wants to see how Relo works, can either sign up via link or share your email ID and phone number in the chat box and making a note of it, and I'll ask the team to reach out to you. Sure. Amit, can you also share your phone number? Or you can DM me personally if you don't want to chat in the group. Okay, thanks, Amit. Perfect. Seema, I'm going to take your leave. Thank you so Sure, much actually for your sure. time. Thanks, Siddhant. Thank you Thanks for so having me. much. Take Yeah, care. thank- Bye-bye. yeah, bye.